So as we all know that today we are going to start our history module and precisely ancient India. Okay? So some of you are old student and have done some parts of history. So as we know that history with respect to the UPSC syllabus, right? Have you, any one of you have gone through the syllabus of history? UPSC syllabus? किसी ने देखा है अभी तक? नहीं? देखो, प्रिसाइजली हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा डिसाइफर्ड नहीं है, स्पेशली हिस्ट्री नहीं तो ऑल सब्जेक्ट्स, इफ यू टॉक अबाउट पॉलिटी इकोनॉमी, दे ऑल आर नॉट precisely deciphered with respect to the topics, right? But if you look at the syllabus of history, you will find that for ancient and for medieval and for modern and for world history, syllabus are divided categorically, please, categorically for prelims and mains. Okay? Why? Because for polity there is no differentiation with respect to the syllabus, right? Entire polity is for pre, entire polity is for mains. But quote here that ancient and medieval, right? That is specifically for prelims, right? Because you guys have not gone through the syllabus, as I expect that, because none of you have spoken about that. So have you gone through the syllabus? Anyone? Koi bhi? Shirisha? Gone through with that? So you will find that about ancient India and medieval India, right? That is specifically for prelims, and the mid of the, that is written in the syllabus, that mid of the 18th century, right? What is that means? What is mid of the 18th century? 1750s onwards, right? तो इसके 1750 onwards will find the syllabus for mains, ठीक है? तो and that is not for art and culture. When we here talk about the history, that does not include the syllabus of art and culture. Art and culture includes the syllabus of ancient India also for mains purpose. ठीक है? तो हिस्ट्री के लिए आज जो मॉड्यूल स्टार्ट होगा, ठीक है, दैट वी विल बिगिन विद एंशिएंट इंडिया. ठीक है? सो एंशिएंट इंडिया एंड मिडिवल इंडिया we will learn with respect to the prelims examination, but remember that the cultural part, ठीक है, or the social, ठीक है, because social part and the cultural part are affiliated. So that is why social part and cultural part, they are for mains purpose, and the political part is specifically for prelims purposes. ठीक है? तो that is the scenario what we are going to learn. सो एंशिएंट इंडिया में सबसे पहले अगर आप देखोगे प्रीलिम्स का सिलेबस, तो ज़्यादा कुछ नहीं मेंशन, केवल वन लाइन का स्टेटमेंट दिया हुआ. ठीक है? व्हाट इज दैट स्टेटमेंट? इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, बस इतना दिया हुआ. ठीक है? यानी कि एक स्टेटमेंट दे दिया है, इट्स लाइक रामायण एंड महाभारत, एंड द टॉपिक इज गिवन एंड द बल्क ऑफ things are there within this topic. So Indian history and Indian national movement means specifically we have to learn about Indian national movement for prelims, and Indian history includes the ancient India. ठीक है? तो ये अब अगर बात करें इंपॉर्टेंस की, तो एवरी टाइम इफ यू लुक एट द PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, एंड स्पेसिफिकली अबाउट द वेटेज ऑफ हिस्ट्री, यू विल फाइंड दैट on an average for past 8 years you will find that approximately 14 to 18 questions including art and culture, ठीक है, including modern India. तो 14 to 18 questions are have been asked for past 5 to 8 years. ठीक है? तो that is how we can get the weightage or the importance of the subject. ठीक है? लेकिन एक मिथ है, ठीक है, और वो मिथ क्या है हिस्ट्री के साथ? सबको लगता है कि हाँ, कुछ some people are there who know that the key to learn the history, but there's a large myth that history is haunting subject. ठीक है? कि कितना याद करें, कैसे याद करें. ठीक है? सो हर
कोई भी सब्जेक्ट है, आप देखो स्कूलिंग से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट टफ कैसे बनता है, ये सब्जेक्ट इजी कैसे बनता है, कब आपको सब्जेक्ट इजी लगता है, किसी के लिए मैथ्स टफ होगा, ठीक है, तो मैथ्स टफ कब हो जाता है आपके लिए, जब आपने मैथ सही से पढ़ी नहीं होती है, या आपको कोई गाइड नहीं करता है सही से, या हो सकता है कुछ सिचुएशन ऐसी रही हो जहाँ पे आप, जब आपको मैथ से कॉन्सेप्ट समझने हो तब आपको प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं मिले हो, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही हिस्ट्री को है, हिस्ट्री को समझने के लिए एक कनेक्टिविटी, ठीक है, कनेक्टिविटी ऑफ डेवलपमेंट्स, ठीक है, जैसे अभी सब लोग बैठे होंगे तो कौन कौन से डायनेस्टी या एरास पता है आप लोगों में, बताओ शुरुआत, सबसे पहला डायनेस्टी अगर आपको पता हो, सबसे पहला एरा पता हो कौन सा, कोई भी, एनीवन वॉलंटियर, यस, हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी कि अब ऐसा तो नहीं कि अर्थ का एग्जिस्टेंस हड़प्पन सिविलाइजेशन से हुआ होगा, ऐसा तो नहीं है, क्यों ऐसा है कि हमें केवल हड़प्पन सिविलाइजेशन से स्टार्ट हुआ है, हमें सिविलाइजेशन के बारे में पता होना, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल वैसे जैसे हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट हुई है, तो हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द की इंपॉर्टेंट थिंग टू कंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री, ठीक है, फोकलोर्स लाइक यू आर getting something, ठीक है, through not written sources, not archaeological sources, you are getting everything by hearing only, by stories only, so you cannot rely on that, right, on the basis of that you cannot construct the history, ठीक है, history is what, history is like systematic study of the informations available, organized study of the informations available in a chronological order, तो अब बिल्कुल जैसे हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट हुई है, ठीक है, कि हमें पता है कि डेवलपमेंट्स क्या क्या हुए, इन द सेम वे आपको हिस्ट्री को ऐसे ही पढ़ना है, सोर्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री, ठीक है, एंड दैट सोर्सेस मस्ट बी वेरी वेरी ऑथेंटिकेटेड एंड रिलायबल, ठीक है, so that we can find a chronological order on the basis of we can develop the history, and when we talk about to develop the history there are various aspects, cultural aspect, political aspect, economical aspect, right, so there are various aspect, अब देखो हिस्ट्री, जैसे हिस्ट्री पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है या हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट है सोर्सेस, वैसे ही हिस्ट्री फॉर यूपीएससी हिस्ट्री पढ़ने के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है सोर्सेस, ठीक है, कि आप कौन कौन से सोर्सेज से पढ़ रहे हो, तो अभी जो लोग बिल्कुल नए हैं या जो थोड़े पुराने भी बैठे हुए ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, दे नो द सोर्सेज, बट दोज हु आर वेरी न्यू दे आर नॉट अवेयर अबाउट द सोर्सेज टू रीड हिस्ट्री फॉर यूपीएससी, तो सबसे पहले जो सोर्सेज हैं यूपीएससी के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, वेरी गुड, ठीक है, तो किसी भी सब्जेक्ट को यूपीएससी के पर्सपेक्टिव में अगर हमें स्टार्ट करना है और हमें सोर्सेज नहीं पता है, ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी, तो अगर मैं आप हिस्ट्री की बात करूंगा आपको पहले यूपीएससी सिलेबस से रेस्पेक्ट में सोर्सेज की बात करेंगे एज ए सब्जेक्ट हिस्ट्री, देन विल मूव टूवर्ड्स द हिस्ट्री, ठीक है, सो those who do not know about the sources they must read NCERT first, ठीक है, so NCERT, old NCERT along with newest NCERT, ठीक है, so old NCERT is better than new NCERT, but we cannot skip new NCERT, ठीक है, and for old NCERT if you look at the classes that depends upon the capacity of the aspirant, that depends, ठीक है, तो either you can start with 6th class because 6th class is the ancient India, then 7th is medieval and 8th for modern, right, and similarly 9th and 10th we can skip that because it belongs to world history, 11th के दो पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट deal with ancient India and second part deal with medieval, and 12th modern India, so these are the books of old NCERT, ठीक है, those who have not bought it they should bought it because we will along with lecture this our responsibility because it's a, मैंने कहा ना कि we will learn history, so we means I along with you, your participation is very important because this is for you only, तो आप नहीं पढ़ोगे, मेरा पढ़ाना है, तो मेरा तो कोई एग्जाम नहीं है कि मैं दूंगा, है ना,
तो आपको साथ में पढ़ना पड़ेगा। तो ये जब साथ साथ पढ़ोगे तो जो लेक्चर में हो रहा है 2 घंटे वो पूरा समझ में आएगा। और इसके अलावा ठीक है, जो ब्रॉडर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो आपको एनसीईआरटी से मिलेगी। इसके बाद जब आप कर लोगे ये, ठीक है, देन ओनली आई विल टेल यू अबाउट द स्टैंडर्ड बुक्स, ठीक है। अदरवाइज तो आपको पता ही है, लेकिन साथ साथ पढ़ना पड़ेगा। और इसके बाद विल प्रोवाइड यू द फेज वाइज प्रोसेस ऑफ लर्निंग हिस्ट्री, बिकॉज learning history also depends upon sources and the systematic way of study of sources, ठीक है। In the same way, when historians constructed the history, they also rely upon the authenticity of sources. In the same way, you have to rely upon these sources. तो जो प्रोसेस है एक्चुअल में आपको प्रोसेस यही फॉलो करनी पड़ेगी। एंड ओल्ड एनसीईआरटीज आर वेरी ब्यूटीफुल एनसीईआरटी विद रेस्पेक्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ हिस्ट्री। अगर आप न्यू एनसीईआरटीज में देखोगे तो आप डेवलपमेंट बहुत हैफेजल्ड वे में है। तो आप एक बार ओल्ड एनसीईआरटी कर लोगे, देन ओनली यू विल गेट टू नो अबाउट द टाइमलाइन, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। तो अगर अब इन सोर्सेस को अगर छोड़ दें तो अब डायरेक्ट अगर हम जंप करें जो अपनी हिस्ट्री है जिसके बारे में बात हो रही है सिलेबस में, Indian history and Indian national movement. So when we talk about Indian history, so we will not bother about the world evolution, ठीक है। We will not go through the geological timeline with respect to history subject, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए आपको पढ़ना होगा जियोलॉजिकल टाइमलाइन, बिकॉज हियर इन the subject history of UPSC syllabus will talk about the cultural aspect of the society, right? Societal, the cultural aspect includes the society, the polity, economy, administration. We will not talk about the biological evolution. Are you getting that? तो कभी स्कूलिंग पढ़ा होगा ना, बायोलॉजिकल डायनासोर्स थे, चले गए, एक्सटिंक्ट हो गए, तो दैट इज द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स. Evolution of life forms means the changes, the hereditary changes, ठीक है, of the species. So we'll not discuss about that, but because it's a part of the prehistory, is the part of ancient India, we should know about the cultural aspect or the cultural timeline of human being along with geological timeline. कि ऐसा वो कौन सा time period था. जैसे when we talk about the geological timeline, so historians divided, geographer divided the timeline largely into 4 period, ठीक है। तो पैलियोजोइक पीरियड दैट इंक्लूड्स द प्री कैम्ब्रियन, ठीक है। तो प्री कैम्ब्रियन पीरियड जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, और जो अर्ली जिनको हम होमिनिड्स बोलते हैं, यानी कि इट्स नॉट द फॉर्म ऑफ द मॉडर्न ह्यूमन। इसके बाद जब पैलियोजोइक से स्टार्ट होगा, फिर मेसोजोइक, देन सेनोजोइक। तो अभी मैं दिखाऊंगा टाइमलाइन आपको, तो कैसे जो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हुआ ह्यूमन बीइंग का, और बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हुआ उसके साथ साथ, जब बायोलॉजिकल एवोल्यूशन होगा तो हमको पता है साथ साथ में कल्चरल एवोल्यूशन भी हुआ होगा, ठीक है। और व्हेन वी टॉक अबाउट द कल्चरल एस्पेक्ट, तो कल्चरल एस्पेक्ट इंक्लूड व्हाट, आपने देखा हो ना कि हम लोग जो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग है वो अर्ली ह्यूमन से कैसे अलग है, बताओ कैसे अलग है। क्या उनको आता था जो हमको नहीं आता है? और या फिर अगर हम अर्ली मैन की बात करें, अर्ली मैन का एवोल्यूशन या डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट किस बेसिस पे उसको कैटेगराइज किया गया होगा, बताओ वर्णिका। हाँ, कौन सा? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो वेरी गुड। हाँ, तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को कैसे डिफाइन करोगे? तब अवेलेबल नहीं थी तो कौन कौन सी फैसिलिटीज? रिमेंबर अर्ली मैन। तो अर्ली मैन किस पे डिपेंड करता था? बिल्कुल, जब आपको लास्ट अर्ली मैन याद हो, अगर कुछ पढ़ा हो तो वेरी गुड, ठीक है। तो दैट अर्ली मैन डिपेंड्स अपॉन हंटिंग। तो हंटिंग, क्योंकि अर्ली मैन वर लाइक एनिमल डिपेंडेंट अपॉन, देखो एवरी ऑर्गेनिज्म, द साइकिल ऑफ द लाइफ एंड बर्थ ऑफ ऑर्गेनिज्म रिवॉल्व्स अराउंड द फूड एंड इट्स अवेलेबिलिटी। तो सबसे पहले जब ह्यूमन का बर्थ हुआ तो सबसे पहले उसने क्या सोचा होगा? कुछ खाने के बारे में। तो जो सबसे पहला जो स्किल था जो डेवलप होते, जिसके बेसिस हम कैटेगराइज करेंगे भी, ठीक है, तो वो क्या था? हंटिंग स्किल। तो पहले जो सबसे पहले जो जो अर्ली मैन थे, दे वर रिलाइंग अपॉन फूड थ्रू हंटिंग एंड गैदरिंग। तो व्हाट गैदरिंग? प्लांट्स, फूड्स, ठीक है। तो उस पर डिपेंड करते थे। फिर जब और स्किल डेवलप हुई तो क्या क्या नया आया जिसकी बेसिस पे हमने
हिस्ट्री को डिवाइड किया। देखो टाइमलाइन समझोगे ना, डेवलपमेंट समझ जाओगे अगर, तो डेवलपमेंट की बेसिस पे आप 50% क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ये ट्रिक नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है एक्चुअल में। ठीक है, ये कोई ऐसी ट्रिक नहीं है कि कर लिया तो सॉल्व कर लिया। ठीक है, लेकिन ये है कि आप एलिमिनेट कर लोगे कि हाँ ये तो नहीं होगा, क्या होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन योर कैपेसिटी ऑफ लर्निंग, लेकिन क्या नहीं होगा ये आपके कॉन्सेप्ट से पता चल जाएगा। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्या हुआ होगा, हंटिंग स्टार्ट करी, गैदरिंग स्टार्ट करी, दे स्टार्टेड, यस, तो पहले क्या किया, हंटिंग गैदरिंग करते थे, मतलब फूड जहां जहां जाता था वो पीछे पीछे जाते थे। फिर उन्होंने क्या किया, हमने जाना बंद कर दिया। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी यही है ना, दे डोंट वांट टू लेबर। ठीक है, सो और ये अर्ली मैन का एक एविडेंस है कि उनको सेटल्ड लाइफ चाहिए थी। ठीक है, क्योंकि उनको भी ऐसे हर एवरी डे शुड नॉट बी द चैलेंज। तो क्या है, अगर नया एवोल्यूशन क्या होगा कि वो फूड के पीछे भागना बंद कर देंगे और क्या करेंगे, फूड प्रोड्यूसर बन जाएंगे, और वहीं से स्टार्ट होगा एग्रीकल्चर। और जब एग्रीकल्चर होगा, कहीं सेटल होंगे, तो क्या होगा, अब पहले 4-5 के ग्रुप में भाग रहे थे। ठीक है, दे वर नोमैडिक्स, आई वुडिंग दैट, सो व्हेन दे वर नोमैडिक दे वर हैड नो सेटल्ड लाइफ। और इसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने सेटल होना शुरू किया, और जब सेटल होना शुरू किया तो जाहिर सी बात है कि गैदरिंग होगी, और गैदरिंग होगी तो वहीं से किसका डेवलपमेंट होगा, कम्युनिटीज का, राइट। और जब कम्युनिटीज का डेवलपमेंट होगा तो फिर फर्दर, अब अगर हम मॉडर्न टाइम से रिलेट करें तो विलेज डेवलपमेंट हुए होंगे, और फिर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ होगा तो विलेज से फिर सिटीज डेवलप हुई। तो वो सिटीज जो पहले हुआ करती थी वो आज की सिटीज से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उस टाइम के अकॉर्डिंग वो सिटीज हुआ करती थी। ठीक है, यानी कि मार्केट होती थी, वेल डेवलप्ड अर्बन टाउन सेटलमेंट होते थे। ठीक है, जब महाजनपद से जो स्टार्ट हुआ, आई वेटिंग दैट, सो इस तरीके से एवोल्यूशन हुआ। लेकिन ये जो हम जो हिस्ट्री समझ रहे हैं आज, कितने आसानी से हम उसको समझ रहे हैं, मैं उसको बता रहा हूँ और आप लोग समझ रहे हैं, लेकिन थिंक अबाउट दैट द स्ट्रगल हिस्टोरियंस एंड जोग्राफर फेस्ड। ठीक है, तो अगर मैं, आप कैसे कोई कहानी स्टैब्लिश करोगे कि मान लो आपके एंसेस्टर्स हैं अपनी फैमिली में, तो कोई कहानी कैसे स्टैब्लिश करोगे, कैसे पता चलेगा कि क्या क्या हुआ था, बताओ। हाँ, सुन के, लेकिन दैट हिस्टोरियंस कैन नॉट रिलाई ऑन सुन के, क्योंकि दे आर सो मेनी पीपल। ठीक है, एंड देयर आर सो मेनी स्टोरीज। ठीक है, तो आपके लिए एंशिएंट इंडिया की कम से कम 10 किताबें होंगी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर। सोचो कि मॉडर्न इंडिया अकॉर्डिंग टू बिपिन चंद्रा, फिर मॉडर्न इंडिया अकॉर्डिंग टू उपिंदर सिंह, फिर मॉडर्न इंडिया अकॉर्डिंग टू दिस स्कॉलर। सो कितनी बुक से पढ़ोगे अलग अलग, कहोगे हर स्कॉलर्स के व्यूज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री ही अलग जा रही है। कोई कह रहा है कि ब्रिटिश 1600 में आए, कोई बोल रहा है ब्रिटिश 1800 में आए उनके अकॉर्डिंग। तो कैसे लर्न करोगे, और यूपीएससी किस को सही मानेगी, अब सोचो। तो इसके लिए हमारे पास क्या, एक ऑथेंटिकेटेड सोर्सेस होने चाहिए। ठीक है, तो क्या हो सकते हैं वो सोर्स, कैसे कैसे पता करोगी, कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे। आप मान लो खुद हिस्टोरियन हो, अपने आप को इमेजिन करो कि अगर कोई साउथ में जहाँ पे हिस्ट्री अभी कंस्ट्रक्ट ना हुई हो ऐसे प्लेसेस, या हो सकता है कि जैसे बताया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन इज द नोन अर्लीस्ट सिविलाइजेशन। और व्हेन वी टॉक अबाउट सिविलाइजेशन, इट्स अ सेटल्ड कल्चर ऑफ कम्युनिटी, स्पेशली कम्युनिटी। तो जो अर्ली मैन थे उनके लिए हम सिविलाइजेशन वर्ड यूज नहीं करते। ठीक है, तो क्या 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 सोर्सेस हो सकते हैं, तो जो हिस्ट्री इंडिया की जो कंस्ट्रक्ट हुई विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, तो हम बात करेंगे उन सोर्सेस की जिसकी बेसिस पे हमने हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट किया और रिकंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेस, बताओ। Excavations, so can we categorically divide all the sources into two parts? ठीक है, कौन कौन से, तो एक तो जैसे आप बताओ सोर्सेस क्या क्या है, एक्सकेवेशंस और मॉन्यूमेंट्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, वेरी गुड, और इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, आर्टिफैक्ट्स, ओके, बुक्स। ठीक है, सो बुक्स, दे आर रिलीजियस बुक्स, नॉन रिलीजियस बुक्स, और बताओ, कुछ और सुनाओ। दे ऑल आर बुक्स। ठीक है, ट्रैवलॉग्स, हाँ, फोकलोर्स। ठीक है, बट देखो बताया ना फोकलोर्स। अब देखो ये जो ऋग वैदिक पीरियड है, जहां से हमको एक एग्जांपल दे रहा हूँ बहुत बेहतरीन है ये फोकलोर्स को समझने के लिए कि क्या ये इसकी बेसिस पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं हिस्ट्री। देखो ऋग वैदिक पीरियड को, अब अभी आगे आप सब कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करते हैं ये भी चीज कि फोकलोर्स जो है, फोकलोर्स
को एविडेंस तब तक नहीं मानते जब तक फोक क्लोज को रिटन बना लिखा गया हो, ठीक है, रिटन सोर्सेज में उसको कंस्ट्रक्ट नहीं किया गया है। तो ऋग वैदिक जो थे उनको बोलते हैं क्या, श्रुति या स्मृति। स्मृति मीन्स जो आपको याद हो स्टोरीज और उनको आपने टेक्स्ट में कन्वर्ट किया हो, श्रुति जो आपने सुनी हुई हो। तो ऋग वेदास के जो हिम्स थे फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स दे वर ट्रांसफर्ड थ्रू फोकलोर, श्रुतिज, कहानियां, वर्डिंग्स, ठीक है, एंड देन दे वर कंपाइल्ड। तो हमें ये नहीं पता है कि वो एग्जैक्टली ऋग वैदिक के हिम्स कब कंस्ट्रक्ट किए गए, ठीक है। तो एक आइडिया आता है कि 1500 बीसी ऑनवर्ड्स ये कंस्ट्रक्ट होना स्टार्ट हुए, क्योंकि जो हमारे पास एविडेंस है उसके बेसिस पे। बट हो सकता है और पहले से हो, लेकिन उनको लिखना कब स्टार्ट किया गया, आफ्टर द पीरियड ऑफ और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। तो इसीलिए वैदिक पीरियड, जो वैदिक पीरियड है, हम उसको ऐसा पीरियड मानते हैं जब राइटिंग वॉज नॉट डेवलप्ड। ऋग वैदिक पीरियड को ऐसा पीरियड मानते हैं जब राइटिंग वॉज नॉट डेवलप्ड, और ऋग वैदिक पीरियड की जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमें रिटन सोर्सेस में मिलती है। ऋग्वेद आर रिटन। ये दोनों में डिफरेंस है, बात समझ में आ रही है कि हमारे एंसेस्टर्स के बारे में, सपोज आपके परदादा, ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, उन्होंने कुछ बातें बताई हो और वो लिखी नहीं गई, हमने कब लिखी आके 2023 में, सॉरी 2023 में लिखी, और वो कब की बात है 1923 की। तो यानी कि हमने लिखा कब 2023 में, यानी कि ये एविडेंस है कि 2023 में ये राइटिंग डेवलप हुई जो मैंने लिखी, और ये स्टोरी कब की थी 1923 की। तो हम वी कैन नॉट से दैट राइटिंग वाज डेवलप्ड इन 1923, बट द written sources of 2023 provided the information of 1923. Are you getting that? ये बात समझ में आ रही है। बिल्कुल वैसे ही ऋग वैदिक पीरियड का हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कि ऋग वैदिक पीरियड में राइटिंग कब स्टार्ट हुई। तो इसलिए हमने जब जब जो हमें अर्लीस्ट मैन्युस्क्रिप्ट मिली उनकी जब डेटिंग निकाली तो उसकी बेसिस पे वो हिस्ट्री के पीरियड में प्रोटो हिस्ट्री के पीरियड में रखे गए। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमको पता है ऋग वैदिक पीरियड, जब वो जिस पीरियड की वो बात कर रहा है उस पीरियड की डेटिंग नहीं है। 1923 की बात कर रहे हैं हम, 1923 के स्क्रिप्ट की डेटिंग नहीं है हमारे पास। जो डेटिंग्स हैं ऋग वैदिक पीरियड की इंफॉर्मेशन है। बात समझ में आ रही है? तो folklores can also be considered as sources, but they must have some supplement of sources which are written. Are you getting that? और बताओ, तो जो कुछ इतना बताया अभी तक, तो उसके बेसिस पे ब्रॉड जो कैटेगरी क्लासिफाई करेंगे उसको, वो क्या होगी? आर्कियोलॉजिकल sources, right, and literary sources. तो कैटेगरिकली डिवाइड करेंगे जब, तो ब्रॉडर पिक्चर मिलेगी कि कौन से सोर्सेस में क्या बता रहे हैं, ठीक है। तो अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस दे आर वेरी सिंपल, ठीक है, इसमें हमको पता है कौन कौन से, ठीक है। तो जैसे किसी ने बताया था मॉन्यूमेंट्स, है ना, किसी ने बताया था कॉइन्स, और क्या बताया था? इंस्क्रिप्शंस, और क्या बताया था? आर्टिफैक्ट्स, ऑब्जेक्ट, ठीक, पॉटरी, एक्सेट्रा। सो दे आर द फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स में दो तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं। फिजिकल ऑब्जेक्ट्स में कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं, दैट इज नथिंग रिटन ओवर देयर, राइट। जैसे अशोका के इंस्क्रिप्शंस हैं, तो अशोका के इंस्क्रिप्शन से हमें जो इन्फॉर्मेशन, अशोका की जो हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट हुई है, इसमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। तो उनके अशोका के इंस्क्रिप्शन थे। तो वैसे ही तो कुछ इंस्क्रिप्शन जैसे मॉन्यूमेंट्स हैं, व्हाट काइंड ऑफ बिल्डिंग यू विल से दिस कैटेगराइज दैट दे आर मॉन्यूमेंट्स। कैसे कहोगे कि ये मॉन्यूमेंट्स? अपने घर को मॉन्यूमेंट्स बोल सकते हो, क्यों? तो आर्कियोलॉजिकल ने किनको मॉन्यूमेंट्स बोला, ठीक है। देखो, मॉन्यूमेंट्स यानी कि इनका कोई ना कोई पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस रहा होगा, हिस्टोरिकल एविडेंसेस मिले होंगे, और एक कल्चरल एस्पेक्ट, यानी कल्चरल एस्पेक्ट इंक्लूड्स द आर्किटेक्चरल डिजाइंस, ठीक है। तो आर्किटेक्चरल डिजाइन होगी, पॉलिटिकल हिस्ट्री रही होगी, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स मिल रहे होंगे हमको वहां पर, ठीक है। तो ऐसे बिल्डिंग्स को हम मॉन्यूमेंट कैटेगराइज करते हैं।
कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्टिफैक्ट्स, पॉटरी। तो अब अगर पॉटरी, आर्टिफैक्ट्स, कॉइन्स, कॉइन्स में अगर आप कॉइन्स की बेसिस पे कैसे हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करोगे बताओ? जैसे किसी ने बोला था कॉइन्स, तो कॉइन्स की बेसिस पे दो तरीके से, पहला तो कॉइन्स की डेटिंग करेंगे, ठीक है। तो हिस्ट्री में कैसे हम पता करते हैं कि डेट्स क्या हैं? कार्बन डेटिंग होती है, ठीक है। हाँ, सॉरी, हाँ, तो एक तो डेटिंग करते हैं, डेटिंग की बेसिस पे हम एज पता करते हैं, ठीक है, कि ये कौन सा कॉइन किस डेट से बिलोंग करता है। आर यू गेटिंग दैट? सो इफ दैट कॉइन बिलोंग्स टू अशोकन पीरियड, इट मींस अशोक इशूड कॉइन्स। बात समझ में आई? तो ऐसे ही सिमिलरली अगर कॉइन्स में कोई इंस्क्रिप्शंस या लेटर्स मेंशन्ड हैं या कोई इमेज मेंशन है, तो उसकी बेसिस पे देखो, हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात की आपने, हड़प्पन सिविलाइजेशन, you how do you know about Harappan civilization? That's the entire history of Harappan civilization is based upon archaeological evidences. ठीक है, हमें कोई भी स्टोरी नहीं पता है कौन किंग था, कहां अटैक किया, लेकिन हमको सोसाइटी पता कैसे थी, कैसे पता चली? हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से, ठीक है। बुल्स अगर कॉइन्स पे बने तो मतलब पता है हमको बुल्स थे उस टाइम पे। हॉर्सेस, हमें जब माउंट्स मिले, ठीक है, हमें जब माउंट्स मिले तो माउंट्स की बेसिस पे या बोन्स मिली, उसके बेसिस पे हमको पता चला कि देवर हंटिंग एनिमल और डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, राइट। सिमिलरली वी हैव सम लिटरेरी रिसोर्सेस, ठीक है। लिटरेरी सोर्सेस आर दो सोर्सेस विच आर एक्चुअली रिटन एंड मेंट फॉर मेकिंग हिस्ट्री, ठीक है। समटाइम्स दे आर रिटन नॉट टू राइट द हिस्ट्री, ठीक है, दे आर जस्ट रिटन ओवर फॉर द पर्पस ऑफ आर्ट ओनली, ठीक है। तो आर्ट के पर्पस से लिखे गए, लेकिन दे प्रोवाइड दैट इंफॉर्मेशन दैट वर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री। ये बात समझ में आई? ठीक है। तो अब यहां पर क्या है कि इंस्क्रिप्शंस लिखे हैं बट दे आर नॉट कॉल्ड रिटन सोर्सेस, ठीक है। व्हाई? लिटरेरी सोर्सेस, बिकॉज इंस्क्रिप्शंस आर एक्चुअली not used for writing. First inscription made and then the writing were made over there, ठीक है, बट द राइटिंग का मीडियम नहीं था ये, ठीक है। लिटरेरी सोर्सेज में अगर आप देखोगे इंडिया के लिटरेरी सोर्सेज, तो नाम बताओ चलो फिर से, कौन कौन से? हाँ, वेदास, ओके, और रामायण, महाभारत और ट्रेवलॉग्स, ठीक है। तो क्या हम लिटरेरी सोर्सेस को पहले तो डिवाइड कर सकते हैं? देखो, आपने फायान का नाम सुना? हाँ, ओके। ह्वेनसांग का नाम सुना? एच सिंह का नाम सुना? टॉलमी का नाम सुना? ठीक है, इन सब के नाम सुने। तो क्या हम डिवाइड कर सकते हैं जो लिटरेरी सोर्सेस हैं उसमें इंडियन इंडियन सोर्सेस, राइट, और फॉरेन ट्रेवलर्स। सो फॉरेन ट्रेवलॉग्स में भी हमने देखा कि ग्रीको रोमन ट्रेवलॉग्स, ठीक है। सो देखो, ये सब डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, जिनके मैं नाम ले रहा हूं, और दोज हु आर वेरी न्यू, ठीक है। डोंट गेट फियरफुल कि ये सब कौन कौन से नाम है तो मुझे पता नहीं है, सबको पता है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। वी विल ऑल लर्न दैट, ठीक है। पहली क्लास है तो केवल एक रेफरेंस पॉइंट है, तो डरने की बिल्कुल बात नहीं, सब पढ़ेंगे, और जब क्लास ओवर होगी तो आपका सारा डर दूर हो जाएगा, ठीक है। दैट आई कैन ट्राई, ठीक। सो ग्रीको रोमन, ठीक है, या फिर अरब ट्रैवलर्स, और या फिर चाइनीज ट्रैवलर, हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और इंडियन सोर्सेज में, अब इंडियन सोर्सेज में तो हम ना कास्ट की बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, ना रिलीजन की बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, राइट। सो वी कैन डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट, राइट, एंड नॉन रिलीजियस टेक्स्ट, ठीक है। तो रिलीजियस के एग्जाम्पल क्या बताए? वेदास, है ना, हाँ, वेदास, एपिक्स लाइक रामायण, महाभारत, ठीक है। नॉन रिलीजियस में क्या क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल जैसे कौटिल्य अर्थशास्त्र, है ना, और संगम लिटरेचर, ठीक है। तो कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये नॉन रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेस थे। तो अब एक ब्रॉडर पिक्चर मिली ना कि इन सब के कॉम्बिनेशन से जो इंडिया की हिस्ट्री है वो डेवलप हुई,
ठीक है, तो हमें वी कैन नॉट फॉरगेट द कंट्रीब्यूशन और वी कैन नॉट अंडरमाइन द कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड समटाइम हिस्टोरियन फील्स दैट archaeological sources plays a very important role to construct the history, because if literary sources are not supplemented by archaeological sources, ठीक है, यानी कि historians कहते हैं कि this is not a statement by me, historians कहते हैं कि अगर महाभारत में कृष्ण जी को साइड किया गया है, मेंशन किया गया है, ठीक है, तो अगर कोई ऐसे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलेंगे उस पीरियड के, सेम पीरियड, ठीक है, 300 BC टू 200 AD के अप्रोक्सीमेटली, तो तभी तो बोलेंगे ना कि एक्चुअल में एग्जिस्ट करता था, ठीक है। वो महाभारत को अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट ने उसको प्रूफ नहीं किया है, ठीक है। तो धीरे धीरे दैट इज अ ट्रांजिशन फेज। तो हमें सुनौली में रथ मिले हैं, ठीक है, तो आप फैक्ट्स मिल रहे हैं, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से उसको वैलिडेट किया जाएगा, ठीक है। तो जैसे आपने क्लास, आप इस बिल्डिंग में आए, ठीक है, और आपने कहीं पढ़ा था कि यहाँ ईडन आईएएस या यूपीएससी कोचिंग चलती थी, तो आप इस रूम में आए और आपने देखा कि यहाँ पे टेंट लगा हुआ है, ठीक है, और थालियां पड़ी हुई हैं, तो क्या आप क्या कंस्ट्रक्ट करोगे, क्या इंटरप्रेट करोगे कि यहाँ क्लासेस चलती थी, यहाँ शादी हुई है? हाँ, तो आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू सप्लीमेंट द लिटरेरी सोर्सेस, ठीक है। तो लिटरेरी सोर्सेस अलोंग विद आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, वी कैन से दैट द हिस्ट्री इज ऑथेंटिकेटेड। अदरवाइज क्या होगा, डिस्प्यूटेड। तो अभी जब पढ़ेंगे ना, तो कई बार मैं आपसे बोलूंगा कि ये डिस्प्यूटेड है, कि ये डिस्प्यूटेड है, क्यों? क्योंकि फैक्ट्स के बेसिस पे। अब एक कॉइन मिला, तो अब सोचो कि आज 2023 में और 2093 में, ठीक है, यहाँ एक्सकेवेशन हो और वहां पे कॉइन जैसी कोई चीज मिले, तो एक किसी का कहना हो सकता है कि ये कॉइन है, और कोई बोल सकता है नहीं, कैरम बोर्ड यहाँ खेला जाता होगा, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, स्ट्राइकर, ठीक है, तो स्ट्राइकर रहा होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि इस टाइम तक कैरम बोर्ड स्टार्ट हो चुका था, लेकिन हम एज्यूम करते हैं क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं था कि कैरम बोर्ड भी हुआ करता था। अगर होता तो हम उसको उन कॉइन्स को डिस्प्यूटेड मानते कि ये किसी गेम का पार्ट हुआ होगा। लेकिन कोई भी लिटरेरी सोर्सेस हमें ये नहीं बताते हैं, क्योंकि लिटरेरी सोर्सेस की बेसिस पे हम उन टर्म्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो अब अगर लिटरेरी सोर्सेज में कहीं मेंशन किया गया होगा बो एंड एरो, और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हमें वैसी कोई चीज मिलेगी, तो मुझे क्या बोलेंगे? बो एंड एरो रहा होगा। बात समझ में आ रही? तो ये सब जो जो इश्यूज हैं, क्योंकि आप जब पढ़ोगे तो आपको पता भी होना चाहिए कि डिस्प्यूटेड क्यों है, और वाई देयर आर वेरियस इंटरप्रिटेशन, कि कोई क्यों बोलता है कि पृथ्वीराज चौहान की डेथ कैसे हुई, इतना डिस्प्यूटेड क्यों है? क्योंकि जो हिस्ट्री लिखी गई है, और कई बार ऐसा भी होता है ना कि मैं आपको, सोचो मैं आपको कुछ बता रहा हूँ क्लास में, मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ, फोकलोर्स के जो फ्लॉज हैं वो समझिएगा, जो वर्बल कम्युनिकेशन है, कि मैंने आपको कुछ बताया जाके, और आपने जो बताया अपने रूम पार्टनर को कि आज हमें क्या पढ़ाया गया, तो देखना कितना डिफरेंस होगा, है ना। कई बार मैं कुछ बोलता हूँ और आप तक कुछ और पहुंचता है और तीसरे तक कुछ और पहुंचता है। तो ऐसे ही होता है, जब महाभारत लिखना स्टार्ट हुआ 10,000 वर्सेस थे, और करते करते आज कितने वर्सेस, मोर देन 1 लाख वर्सेस। तो ऐड होते गए, ऐड होते गए। तो जब आप नोट्स देखो अपने शुरुआत में लिखोगे, अपडेट करोगे उसको, तो तभी तो ऐसा होता है कि किसी की कॉपी में कम मार्क्स होते हैं, किसी की कॉपी में ज्यादा मार्क्स होते हैं। क्यों? क्योंकि जो लिटरेरी सोर्सेस हैं, ठीक है, वो जब ट्रांसफर होते गए, तो क्या हुआ, आपने अपने दादाजी का लिखा हुआ, क्योंकि वो पेरिशेबल था पेज, तो वो खराब हो सकता है, तो आपने कॉपी करना स्टार्ट किया, और आपने जब कॉपी किया, ठीक है, तो यूपीएससी को लिख दिया ओपीएससी, तो वो उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है। तो आपने क्या किया, हिस्ट्री को फिर से डिकंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया। तो ऐसे ही हिस्ट्री में डिस्प्यूटेड कब होता है, जब ये कॉपी, जब ये ट्रांसफर होता है, ठीक है, हिस्टोरिकल जो लिटरेरी एविडेंसेस हैं, ठीक है, या फिर कोई छेड़छाड़ हुई आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के साथ में, ठीक है, तब ये हिस्ट्री डिकंस्ट्रक्ट होगी, और यहाँ पर हमें एविडेंसेस जो डिस्प्यूटेड होंगे, तो उसकी बेसिस पे एक वाइड कंक्लूजन नहीं निकल पाता। आई गेटिंग दैट? तो दैट इज व्हाई देयर आर सम, according to some scholars, the interpretations are sometimes disputed. We cannot say that कि हड़प्पन टाइम्स पे जो हमें हॉर्स के स्केल्टन्स मिले, अब हॉर्स के स्केल्टन्स मिले, हॉर्स
टाइप के दिख रहे थे, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं क्योंकि हमें कहीं भी अदर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में कहीं भी सप्लीमेंट नहीं कर रहा था हॉर्स, तो हमें पता नहीं है कि वेदर हरप्पन पीपल यूज्ड डोमेस्टिकेटेड हॉर्स और नॉट। यस, हॉर्स वाज देयर, दैट इज अकॉर्डिंग टू यूपीएससी, क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो दैट इज द कॉम्प्लिकेशंस इन अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री। और ये सारे सोर्सेस को जब हमने स्टडी किया, ठीक है, तो स्टडी करने के बाद हमने कैटेगराइज किया इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में, ठीक है। तो एक तो ऐसे सोर्सेस जिसमें लिटरेरी सोर्सेस अवेलेबल थे, ठीक है, उसको हम कहते हैं हिस्टोरिकल पीरियड, ठीक है। देखो ब्रॉडर टाइमलाइन समझ लोगे, है ना, कि हमको जब स्टोरी पता चल जाती है ना पूरी, एक्चुअल में पूरी स्टोरी क्या है, इसके बाद हम उसको ब्रेक कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स में एंड टाइमलाइन में। लेकिन प्रॉब्लम हिस्ट्री समझने में यही आप लोग को होती है कि एक्चुअल में ये टाइमलाइन और पैरेलल टाइमलाइन चल कैसे रही हैं, ठीक है, कि मुगल्स भी आए और ब्रिटिशर्स भी थे, और अगर साथ साथ समझ लिया ना कि ब्रिटिशर्स कौन कौन से ब्रिटिशर्स के पीरियड में कौन कौन से रूलर्स या डायनेस्टीज थी, चीजें इजी हो जाती है, हमको याद नहीं करना पड़ता है कि हु वाज कॉन्टेम्पररी टू लॉर्ड डलहौजी, क्योंकि हमको टाइमलाइन पता होता है कि इस टाइम कौन रहा होगा और उस टाइम पे क्या डेवलपमेंट हुए होंगे। आर यू गेटिंग दैट? सो दैट इज व्हाई द टाइमलाइन एंड डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर देखो हिस्टोरिकल पीरियड कौन सा पीरियड, व्हेन लिटरेरी सोर्सेस आर अवेलेबल और रिटन सोर्सेस आर अवेलेबल। तो रिटन सोर्सेस हमें मिलना कब से स्टार्ट हुए, कौन कौन से टेक्स्ट बुक जो हमें अगर कुछ आइडिया हो कि रिटन सोर्सेस की जो ट्रैवलॉग्स या अर्लीस्ट रिटन सोर्सेस अवेलेबल वो हमें हुए, वो बुद्धिज्म, ठीक है। तो बुद्धिस्ट जैनिस्ट जो पीरियड था, ठीक है, यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। और ये जब स्टार्ट होगा तो ये तो कंटेम्प्रेरी पीरियड था महाजनपदास का, डोंट वरी अबाउट दैट, मैं सब बताऊंगा भी, केवल सुन लो कि ये महाजनपदास मैंने बोला है, ठीक है। और ये महाजनपदास कहाँ से आया, कौन से पीरियड का था, सब बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक। तो पहले ब्रॉडर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, लिटरेरी सोर्सेस कौन सा पीरियड, हिस्टोरिकल पीरियड। तो इसका मतलब है कुछ इसके पहले का पीरियड कैसा रहा होगा, जहां पे हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज नहीं थे, तो मतलब कैसे एविडेंसेस थे, वी आर रिलाइंग अपॉन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो वो कौन सा पीरियड था, प्री हिस्ट्री पीरियड या प्री हिस्टोरिकल पीरियड। अब प्री हिस्टोरिकल पीरियड और हिस्टोरिकल पीरियड का जो ट्रांजिशन फेज है, यानी कि जब हम रिटन सोर्सेज की तरफ बढ़ रहे थे तो हमने तो लिख दिया और आप पढ़ नहीं पाए, कभी कभी ऐसा होता है मेन साइंस राइटिंग में, है ना, कॉपी कॉपी आपने लिख दी और एवेल्यूटर पढ़ ही नहीं पा रहा है कि आपने लिखा क्या है, तो इसलिए इंपॉर्टेंस नहीं मिलती, नंबर नहीं मिले, तो इसीलिए जो ये जो पीरियड है ना, इसको इतने मार्क्स नहीं मिलते हैं, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंस नहीं मिलता है। तो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में केवल छोटी छोटी इंफॉर्मेशन हैं, केवल हम उन फैक्ट्स को लर्न करते हैं, लेकिन कोई स्टोरी नहीं पता है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में ज्यादा किसी का इंटरेस्ट है नहीं कि क्या रहा होगा, क्या कहानी रही होगी। मॉडर्न में बड़ा इंटरेस्ट है कि अशोकन की स्टोरी क्या रही होगी, बॉलीवुड ने मूवी तक बना दी, ठीक है। और हड़प्पन जब हड़प्पन पे मूवी बनाई तो इसलिए वो डिस्प्यूटेड हुई, क्यों, क्योंकि उन्होंने अपने तरीके से इंटरप्रेट किया। तो हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट नहीं करना चाहिए, हिस्ट्री को हिस्ट्री रहने देना चाहिए। इंटरप्रिटेशन वेरियस हो सकती है, यू कैन डिस्क्लेम आल्सो दैट कि दैट इज नॉट द फाइनल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो अब अगर मोहनजोदाड़ो मूवी में घोड़े हॉर्स को लेके चल रहे हैं, उस पर बैठ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज द डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री, क्यों, क्योंकि दिस इज नॉट द फाइनल इंटरप्रिटेशन। बट व्हेन यू डोंट रीड द हिस्ट्री फ्रॉम द ऑथेंटिकेट सोर्सेज एंड जस्ट वॉच द मूवी, देन यू विल फाइंड दैट द हॉर्सेस वर डोमेस्टिकेटेड बाय द हड़प्पन पीपल एंड यू विल क्लिक द ऑप्शन, ठीक है, चेक करोगे इस ऑप्शन को जो यूपीएससी में पूछा गया है, एंड यू विल हैव द नेगेटिव मार्किंग, क्यों, क्योंकि वो ऑप्शन गलत होगा। ये बात समझ में आ रही है? सो हिस्ट्री जो भी आप सुन रहे हैं, जो भी ड्रामेटिकल वर्जन आप देख रहे हो, दैट शुड ऑलवेज बी कॉम्प्लीमेंटेड बाय द ऑथेंटिकेटेड सोर्सेस। तो इसलिए अब यहां पर ऐसा वो पीरियड था, यानी कि आईवीसी, और वी कैन से द प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। इसका मतलब यह है कि हमें लिटरेरी सोर्सेस नहीं मिले, ठीक है, या लिटरेरी सोर्सेस इज आर नॉट अवेलेबल टू कंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड।
or we can also say that कि writings were available, well we could not decipher that. ठीक है, यानी कि कुल मिला के फाइनल इंटरप्रिटेशन इज दैट प्री हिस्टोरिकल पीरियड में हमारे पास लिटरेरी सोर्सेस नहीं है हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, या हम कह सकते हैं कि जो सोर्सेज हैं they are not yet deciphered to construct the history and these sources are not labeled as literary sources, क्योंकि हमें पता ही नहीं क्या लिखा हुआ है. बूस्टरफोर्डियन लैंग्वेज लिखी हुई है हड़प्पन्स की, हमें पता ही नहीं कि लिखा क्या है. और अगर जेम्स प्रिंसेप ने जो इंस्क्रिप्शंस लिखे थे अशोका के, उनको डिसाइफर नहीं किया होता तो हमें यह भी नहीं पता होता कि अशोका के इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है. बात समझ में आई? तो वो जो सिंबल्स बने हुए हैं जिन्होंने लिखा होगा, हमें जो हिस्टोरियंस ने उसको डिसाइफर किया, देन वी कुड गेट टू अंडरस्टैंड अबाउट द हिस्ट्री. बात समझ में? तो ये जो प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड है, दैट इज वन पीरियड अंडर इट, दैट इज आईवीसी. ठीक है, और आईवीसी इज व्हाट? इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन. और ये जो पीरियड था, दैट पीरियड इज एक्चुअली कॉन्टेम्पररी, द लास्ट ऑफ द मैच्योर हड़प्पन पीरियड कोइंसाइड्स विद द वैदिक पीरियड. ठीक है, वैदिक पीरियड विद रिस्पेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ नॉन लिटरेरी सोर्सेज. तो लिटरेरी सोर्सेज जहां से मिलना में स्टार्ट हो जाएंगे जब लिखे गए होंगे. वो कौन सा पीरियड था? बुद्धिज्म पीरियड. लेकिन दैट लिटरेरी सोर्सेज टॉक्स अबाउट द प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड. तो आईवीसी का जो पीरियड था, अभी मैं बता दूंगा सब पीरियड क्या था, क्योंकि लार्जली समझ लो पहले कि एक्चुअली ये कैटेगराइज कैसे किया गया. तो जो आईवीसी पीरियड था, इसी में साथ में ही वैदिक पीरियड को भी रखते हैं, क्योंकि ये जो पीरियड थे, इन दोनों ही पीरियड्स में कहा जाता है कि वी डू नॉट हैव द रिटन सोर्सेस अवेलेबल. ठीक है, वैदिक पीरियड के जो रिटन सोर्सेज हैं वो कब के लिखे माने गए हैं? आफ्टर वैदिक पीरियड. जिस वैदिक पीरियड की बात हो रही है, जो मैंने भी एग्जांपल दिया कि 1923 की बात हो रही है, लेकिन लिखे कब गए? जो हमें पर लेटेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट हैं वो लेटर ऑन के हैं. ठीक है, तो इसीलिए आईवीसी और वैदिक पीरियड को, अब वैदिक पीरियड को भी ये डिस्प्यूटेड है कि कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि इनको रखना चाहिए हिस्टोरिकल पीरियड में, कुछ मानते हैं प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में. so that is disputed, but it is assumed that largely that we can keep it at the end of the protohistoric period, the transition phase. ठीक है, and largely under the historical period. Are you getting that? तो अब आ जाते हैं जो बिल्कुल क्लियर पिक्चर जहां पर है, वो है प्री हिस्टोरिक पीरियड. अब प्री हिस्टोरिक पीरियड से ही देखो फर्स्ट पीरियड क्या है? प्री हिस्टोरिकल पीरियड. और यहीं से एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री शुरू होती है. और ये जो पीरियड दैट इज कंप्लीटली बेस्ड अपॉन द नॉन लिटरेरी सोर्सेस, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस. और प्री हिस्टोरिकल पीरियड में, क्योंकि हम ये सब जितने भी पीरियड्स की बात कर रहे हैं, वी विल टॉकिंग अबाउट द कल्चरल डिफरेंशिएशन ओवर द पीरियड्स. तो कल्चरल डिफरेंशिएशन में लिटरेरी लिटरेचर, राइटिंग स्किल इज ऑल्सो द कल्चरल पार्ट. तो कल्चरल डेवलपमेंट हुआ, तो यहां कल्चरल डेवलपमेंट नहीं हुआ था, यहां हुआ, लेकिन राइटिंग डिसाइफर नहीं हुई, और यहां पर राइटिंग डिसाइफर हो गई, तो दे आर कल्चरल डेवलपमेंट, राइट. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्री हिस्टोरिकल पीरियड आर, this period is known for that period where we have archaeological sources available. ठीक है, only archaeological sources available, and that period deals with largely the Paleolithic period. ठीक है, अब Paleolithic period यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड में Paleolithic, तीन पीरियड्स हैं लार्जली, मेसोलिथिक, और सबसे बड़ा पीरियड जो था वो Paleolithic, मेसोलिथिक एंड वेरी गुड नियोलिथिक पीरियड. सो इस तरीके से कुछ हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है. प्री हिस्टोरिक पीरियड, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक. अब जैसे मैंने बताया कि जितना भी कैटेगराइजेशन हुआ है दैट इज बेस्ड अपॉन द कल्चरल डेवलपमेंट. ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि पेलियोलिथिक और मेसोलिथिक का जो डिफरेंशिएशन होगा दैट वाज बेस्ड अपॉन cultural development. Mesolithic to Neolithic, that would be based upon cultural development. Entire prehistory period and the entire protohistory period is differentiated on the basis of कल्चरल डेवलपमेंट. बात समझ में आई? तो अब बताएं, अब हमें पढ़ना ये है कि कल्चरल डेवलपमेंट क्या हुए. कल्चरल डेवलपमेंट समझ जाओगे तो ये पूरा टाइमलाइन समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो प्री हिस्टरी पीरियड में कितने पीरियड्स हैं? तीन, लार्जली पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक. अभी हम बात करेंगे, जब लार्जली इसकी बात करेंगे प्रीहिस्टोरिक पीरियड की, तो देखेंगे कि पेलियोलिथिक अगेन डिवाइडेड, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल्स. ठीक है, देयर स्किल्स मतलब स्किल्स ऑफ अर्ली मैन. ठीक है, और फिर proto-historical period, that is IVC and Vedic period, and that is the large one because we have
द बंडल ऑफ लिटरेरी सोर्सेज अवेलेबल, ठीक है। तो हिस्टोरिकल बुद्धिस्ट ऑनवर्ड्स टू अब तक, ठीक है, आज तक जितने भी अवेलेबल सोर्सेज, दैट इज पार्ट ऑफ द हिस्टोरिकल पीरियड। तो हिस्टोरिकल पीरियड को भी एक बार देखो, ज्यादा तो नहीं हो रहा है अभी ना, टाइमलाइन समझ में आ रही है, ठीक है। देखो जब लगे ना तो बता देना, ठीक है, तो मैं लिखना शुरू करा दूंगा, लेकिन अभी फ्लो समझना कि पहले हमने सोर्सेस पढ़े, आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्सेज, उसकी बेसिस पे हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया, हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करी, और हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करी तो उसको डिवाइड भी किया कि मेजर डिवीजन क्या है, लिटरेरी सोर्सेस, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। और जब हमारे पास हिस्टोरिकल सोर्सेस अवेलेबल हो गए तो उसकी बेसिस पे हमने देखा, क्योंकि लंबा पीरियड है बुद्धिज्म पीरियड, यानी कि 600 बीसी, और अभी कितना 2024, तो अप्रोक्सीमेटली 2600 ईयर्स की बात कर रहे हैं। और इस पीरियड में हमने देखा कि कई सारे डेवलपमेंट हुए इंडिया में, पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो अब उन पॉलिटिकल डेवलपमेंट को भी हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अगर हम उनको डिवाइड करें तो जो हिस्टोरिकल पीरियड है यहां पे आते हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल पीरियड, ठीक। अब इस हिस्टोरिकल पीरियड में अब जो जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे, व्हेन टॉकिंग अबाउट द सिलेबस ऑफ यूपीएससी, देन कैटेगोरिकली वी डिवाइडेड द सिलेबस इनटू एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, ठीक है। तो वही डिवीजन है हिस्ट्री का। तो लार्जली हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। सो हिस्टोरिकल, अब देखो एंशिएंट इंडिया इंक्लूड्स historical period, means all that period started through the written sources, जहां से हमें हिस्ट्री के रिटर्न सोर्सेज अवेलेबल हुए। बट इसके पहले प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड एंड प्री हिस्टोरिकल पीरियड, ये तीनों ही पार्ट हैं एंशिएंट इंडिया के, ठीक है। तो स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग हियर अबाउट व्हेन द राइटिंग वर स्टार्टेड, ठीक है। तो जब राइटिंग स्टार्ट हुई तो उसमें एंशिएंट इंडिया का डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो जो रिटर्न सोर्सेज अवेलेबल हैं उन्होंने जो टाइमलाइन प्रोवाइड की, ठीक है। तो द टाइमलाइन वी हैव इज लाइक दैट, द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले हमें कौन सा पीरियड देखने को मिला, महाजनपदास, and this contemporary to period of, and what was that time period, 600 BC onwards, right? And that would देखो महाजनपदास were the जनपदास, they were like ancient cities, ठीक है। और उन्हीं में से निकल के आएगा मगध, और जब मगध की बात करेंगे तो उसमें सबसे बड़ी डायनेस्टी निकल के आएगी मौर्यन डायनेस्टी, ठीक है। तो मौर्यन डायनेस्टी के लिए अलग डिवीजन है, तो इसके बाद हम इसी में महाजनपदास में मौर्यंस। सो मौर्यंस की जब बात करेंगे तो लगभग 300 बीसी से स्टार्ट करेंगे, 200 बीसी तक जाएगा स्पेसिफिकली मौर्यन। और इसके बाद पोस्ट मौर्यन, क्योंकि मौर्यन के बाद देखो जो महाजनपदास में मगध पीरियड था, ठीक है। अभी देखो बहुत लोगों को टाइमलाइन नहीं पता होगी, तो महाजनपदास इंक्लूड 16 जनपदास, ठीक है। और 16 जनपदास में एक जनपद था, जनपद मतलब जैसे अभी का डिस्ट्रिक्ट को जनपद बोलते हैं, दैट वाज नॉट लाइक दैट, छोटा डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है। बट वो एक स्टेट्स थे छोटे से, ठीक है, पॉलिटिकल एम्पायर्स थे। तो उसी में से मगध सबसे बड़ा एम्पायर निकल के आया। और जो मगध एम्पायर था, मगध यानी कि जो स्टेट था मगध, जैसे दिल्ली में हम कहते हैं दिल्ली में मुगल्स आए, ब्रिटिशर्स आए, वैसे ही मगध जो एम्पायर था उसमें डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज थी, ठीक है। हर्यक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, देन मौर्यन डायनेस्टी। तो मौर्यन डायनेस्टी बिकेम द लार्जेस्ट डायनेस्टी, और इसीलिए जो मौर्यन डायनेस्टी जो लार्जेस्ट डायनेस्टी थी मगध की, तो इसीलिए प्री मौर्यन यानी कि मौर्यन पीरियड, प्री मौर्यन को हम पढ़ेंगे महाजनपदास में, फिर मौर्यन को स्पेसिफिकली दैट इज द बिगेस्ट एम्पायर, तो मौर्यन एम्पायर। और फिर मौर्यन एम्पायर के बाद जाने के बाद, ठीक है, तो उस पीरियड को हम बोलेंगे मगध के राइज से लेकर मगध के फॉल तक, उस पीरियड को हम बोलेंगे पोस्ट मौर्यन एम्पायर, जब तक गुप्ताज नहीं आए थे, बात समझ में। तो इसके बाद पोस्ट मौर्यन एम्पायर, देन गुप्ताज, ठीक, एंड देन पोस्ट गुप्ता पीरियड, दैट विट अप टू लगभग 700 सीई के पास आसपास
एंड हो गई, ठीक है। तो गुप्तास 300, तो अब ये 700 पे एंड हो गया, ठीक है। अब गुप्त देखो पोस्ट गुप्ता पीरियड और फिर स्टार्ट होगा मिडाइवल। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आएगा कि क्या कैसे हिस्टोरियंस ने कह दिया कि ये एंशिएंट पीरियड है और ये मिडाइवल पीरियड है, कैसे डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो पोस्ट गुप्ता पीरियड के बाद का जो पीरियड है उसको कैटेगराइज किया मिडाइवल इंडिया में, ठीक है। क्योंकि अभी तक जो आप देखोगे ना, यहां इस पीरियड तक इस्लाम का इन्वेजन नहीं हुआ था और इस्लामिक रूल स्टैब्लिश नहीं हुआ था इंडिया में। आर यू गेटिंग दैट? तो इसलिए जब जैसे ही कोई फॉरेन इन्वेडर, क्योंकि अभी एंशिएंट पीरियड में भी ग्रीक्स आए, अटैक करके वापस चले गए, ठीक है, लेकिन किसी ने रूल स्टैब्लिश नहीं किया। तो इसीलिए जो जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है इंडिया की, उसमें जैसे ही फॉरेन इन्वेजन्स हुए और उनका रूल स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो उस पीरियड को वहां से चेंज कर दिया गया और कहा गया मिडाइवल पीरियड, ठीक है। और देखो मिडाइवल पीरियड वर्ल्ड के लिए अलग था, डार्क एज था, और इंडिया के लिए अलग है, ठीक है। अभी तो ये जहां तक ये जो पीरियड की हम बात कर रहे हैं, कहीं भी डार्क एज कंसीडर नहीं किया गया और इंडिया में भी ऐसा कोई डार्क एज कंसीडर नहीं किया जैसे वर्ल्ड में डार्क एज कंसीडर किया गया था। तो मिडेवल इंडिया कहां से स्टार्ट होगा? इस्लामिक इन्वेजन से। तो लार्जली पूरा जो मिडेवल इंडिया है वो लगभग स्टार्ट होगा 800 से 1800 सीई। ये बात समझ में आ रही है? हमने कहां पे क्लोज किया था? लगभग 700 सीई के आसपास, 7 to 800 ट्रांजिशन फेज, ठीक है। और 800 सीई से 1800 सीई तक, ये बात यहां तक समझ में आई पहले, एंशिएंट इंडिया कहां तक आया, ठीक है, 800 सीई का अप्रोक्सीमेटली। और 800 टू 1800 सीई ये जो पीरियड है दैट इज मिडिवल इंडिया। और इसमें भी दो तरह का कैटेगरी पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखने को मिले जिनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं दो पार्ट में, ठीक है। तो जब इस्लामिक रूल एक्चुअल में स्टार्ट हो गया, ठीक है, स्टैब्लिश हुआ दिल्ली में, इसके पहले जो था वो इस्लामिक इन्वेजन हुए थे और छोटे छोटे पार्ट्स में अफगानिस्तान के जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है वहां पे रूल स्टैब्लिश हुए थे। लेकिन इंडिया, दिल्ली जिसको मानते थे सेंटर ऑफ द पॉलिटिकल डेवलपमेंट, वहां से रूल स्टार्ट नहीं हुआ था। तो इसलिए ये जो फर्स्ट है यानी कि अर्ली मिडिवल बोला गया और लेटर मिडिवल। तो लेटर मिडिवल actually that is when this categorized when the rule of Turks started, ठीक है। फिर मुगल्स रूल करेंगे। तो ये पीरियड जो आपको पता है ना 1206 तो 1200 ऑनवर्ड्स और अप्रोक्सीमेटली 1700 ऑनवर्ड्स तक ये रूल, क्योंकि इसके बाद से क्या स्टार्ट है? मॉडर्न इंडिया, ठीक है। तो 1700 जैसे ही मुगल रूल डिक्लाइन होना शुरू होगा, और तो जब मुगल रूल, क्योंकि दो दो रूलर्स पैरेलल चल रहे थे इंडियन टेरिटरी में, मुगल रूल्स एंड ब्रिटिश रूल। तो जब मुगल रूल डिक्लाइन होगा तो ब्रिटिश रूल बढ़ना स्टार्ट हुआ और यहीं से डिवीजन स्टार्ट हुआ मॉडर्न इंडिया का, जब ब्रिटिशर्स का रूल एक्सपैंड होना स्टार्ट हुआ आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। तो इसलिए मुगल एम्पायर लेटर मिडिवल इंक्लूड्स दिल्ली सल्तनत, ठीक है, 1500 टू 1526 जब बैटल ऑफ पानीपत एंड बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी, और तब स्टैब्लिश हुआ मुगल रूल 1526 तक। तो दिल्ली सल्तनत 1208 टू 1526 और 1526 ऑनवर्ड्स मुगल एम्पायर, ठीक है। दैट इज पार्ट ऑफ द लेटर मिडिवल। और सिमिलरली ये तो नॉर्थ का, और सिमिलरली साउथ में भी कुछ डेवलपमेंट के सोर्सेस हमको मिलने स्टार्ट हुए। तो जो विजयनगर एम्पायर, बहमनी किंगडम, ठीक है, अभी केवल नाम सुन लो, ठीक है, अगर कोई बना रहा हो तो चार्ट भी बना लो, याद रहेगा। तो बहमनी किंगडम, और बहमनी किंगडम जब डिसइंटीग्रेट होगा और इसके बाद मुगल एम्पायर साउथ तक भी पहुंचेगा, ठीक है। तो ये हो गया लेटर मिडिवल। अब अर्ली मिडिवल में जब आएंगे तो अर्ली मिडिवल में अभी तक पूरी तरीके से इस्लामिक रूल एस्टेब्लिश नहीं हुआ था, ठीक है। राजपूतास का पीरियड था और एज ऑफ 3 एम्पायर्स, राष्ट्रकूटास, ठीक है, कभी हिस्ट्री में नाम सुना हो तो। अभी तो पढ़ेंगे सब कुछ, बिल्कुल जो न्यू है। मैंने फिर से मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि घबराने की बात नहीं कि क्या बात हो रही है, ठीक है, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। आप एक टाइमलाइन समझ लो ब्रॉडर कि ये अर्ली मिडिवल पीरियड है, ये लेटर मिडिवल पीरियड है। जैसे कि आप जब डायनेस्टी का नाम लो तो आपको पता हो कि ये किस टाइम पीरियड की बात हो रही है, ठीक है। तो अर्ली जो मिडिवल पीरियड है उसमें अभी तक कंप्लीटली इस्लामिक रूल एस्टैब्लिश नहीं हुआ था, दो दे वर फाइटिंग विद द इस्लामिक रूल्स। तो अर्ली जो मिडिवल पीरियड है इसमें नॉर्थ में और साउथ में जो पीरियड है वो चोला पीरियड है। और जो अर्ली, इसका मतलब हमने क्या बात कर रहे हैं,
1200 के पहले की, है ना। 1200 में क्या स्टार्ट हुआ, लेटर मिडिवल स्टार्ट हुआ। तो 1200 के पहले की बात करें तो साउथ में चोला पीरियड कब रहा हुआ करता था, दिल्ली सल्तनत से पहले। आर यू गेटिंग दैट? सो दिस इज हाउ यू कैन डेवलप द टाइमलाइन इन योर ब्रेन, कि अगर कोई हिस्टोरिकल इवेंट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए पूछा है यूपीएससी ने, तो आपको पता होना चाहिए कि विजयनगर अंपायर की जब बात हो रही है तो चोला डिक्लाइन पे था। ठीक है, बात समझ में आई? तो चोला पीरियड यानी कि हम बात कर लें अर्ली मिडिवल, 800 से 800 सी टू 1200 सीई। और नॉर्थ में एज ऑफ 3 एम्पायर्स, here we'll discuss about the राष्ट्रकूटास, प्रतिहारास, ठीक है, पालाज, और साथ साथ में राजपूत राजपूतानास, मीन अलग अलग जो राजपूतानास फैमिलीज थी। तो दिस इज हाउ वी कैन कैटेगराइज द एंटायर हिस्ट्री, और मॉडर्न इंडिया फिर ब्रिटिश एम्पायर थ्रू। ठीक है, तो एंशियंट को इस तरीके से पहले हम पढ़ेंगे जो प्री हिस्टोरिकल पीरियड है, देन वी विल स्टडी प्रोटो हिस्ट्री। तो अब खुद सोचो कि जो हमने एक लाइन का सिलेबस था उसको डिसाइफर किया, तो कहां से स्टार्ट करेंगे, पहले प्री हिस्टोरिकल पीरियड से, इसके बाद क्या पढ़ेंगे, प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, आईवीसी, इसके बाद क्या पढ़ेंगे, वैदिक पीरियड, इसके बाद क्या पढ़ेंगे, हिस्टोरिकल पीरियड में हम पढ़ेंगे बुद्धिज्म, जैनिज्म और महाजनपदास। फिर आएंगे मॉडर्न पीरियड, पोस्ट मॉडर्न पीरियड, गुप्तास एंड पोस्ट गुप्तास, एंड दिस इज ऑल अबाउट एंशिएंट इंडिया। ठीक है, फिर मिडेवल जब स्टार्ट करेंगे तो हम फिर से स्टार्ट करेंगे जो एज ऑफ 3 एम्पायर्स, क्योंकि यहां पे गुप्ता देखो, गुप्तास मौर्यास ब्रेक हुए, पोस्ट मॉडर्न एम्पायर, हर्षवर्धन, सातवाहना, तो ये सब जितने भी आएंगे ये गुप्तास पोस्ट गुप्तास। तो गुप्तास पीरियड के बाद क्योंकि लार्ज एम्पायर था, ब्रेक हुआ, डिसइंटीग्रेट हुआ मल्टीपल किंगडम्स में, तो मौर्यन एम्पायर ब्रेक हुआ, मल्टीपल पोस्ट मॉडर्न पीरियड। ठीक है, तो इसके बाद शुंग, कण्व, सातवाहना, ठीक है, वैसे ही गुप्तास ब्रेक होंगे तो बाद में पोस्ट गुप्तास। ठीक है, इसके बाद जब पोस्ट गुप्ता, जब ऑलरेडी अंपायर डिसइंटीग्रेटेड है, तुम देखेंगे यहाँ पे राष्ट्रकूटास निकल के, प्रतिहारास, ठीक है, पालास, चोला पीरियड साउथ में। और यही वो पीरियड था जब दिल्ली सल्तनत ने अटैक किया। आपको याद होगा ना कि घोरी का अटैक हुआ पृथ्वीराज चौहान, तो ये वही पीरियड था। किस पीरियड की बात कर ले, अर्ली पीरियड की बात कर रहे हैं। और अर्ली पीरियड के जब एंड में जब ये राजपूतानास की बात करेंगे तभी तो पृथ्वीराज चौहान राजपूतानास फैमिली। ठीक है, इसके बाद ये लेटर मिडिवल स्टार्ट होगा, जब 1200 से स्टार्ट होगा हमारा दिल्ली सल्तनत। ठीक है, जब घोरी का बैटल होगा और कुतुबुद्दीन ऐबक विल थ्रोन द दिल्ली अंपायर। ठीक है, तो ये इस तरीके से पूरा डिवीजन है। इतना बात समझ में आया? ठीक है, तो पूरा ब्रॉडर एक कैटेगोरिकली समझ में आया कि टाइमलाइन कैसे डेवलप हुआ। ठीक है, सो शैल वी मूव टू द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो कहां से स्टार्ट करना है हमको? हाँ, यस, हाँ, नहीं वॉइस क्लियर नहीं। हाँ, हाँ, क्या कह रहे हैं? हम्म, हाँ, रूल, हाँ, हाँ, वही तो मैं बोला कि कब स्टार्ट हुआ इस्लामिक रूल, बताया ना मैंने वही। अर्ली मिडेवल में रूल स्टैब्लिश नहीं हुए थे। ठीक है, इस्लामिक रूल स्टैब्लिश नहीं हुए थे। ठीक है, क्लियर? हाँ, देखो अब विल स्टार्ट विद प्री हिस्ट्री। ठीक है, लेकिन उसके पहले साथ साथ में एक बार टाइमलाइन देखो कि उसको रिलेट कर पाओगे कि जो जियोलॉजिकल टाइमलाइन है। देखो कुछ ऐसा कभी पढ़ा होगा ना एनसीईआरटीज में, स्कूलिंग में, ठीक है, कि प्री कैम्ब्रियन पीरियड था, ठीक है, देन पैलेजोइक पीरियड, एंड then mesozoic period or cenozoic period. That's in precambrian period we know that the oldest known earth rocks were developed. ठीक है, और जो पैलेजोइक पीरियड था और इसी में स्टार्ट हुआ था डिसइंटीग्रेशन ऑफ पेंजिया, अलग अलग कॉन्टिनेंट बनना स्टार्ट हुए। और इसके बाद मेसोजोइक पीरियड था जहां पर ऑक्सीजन का मास एक्सटिंक्शन हुआ। ठीक है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता गया, डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए, टेरेसिक पीरियड, जुरासिक पीरियड। तो ये जो पीरियड्स थे दे वर पार्ट ऑफ द मेसोजोइक। ठीक है, लेकिन हमको ये सब स्टडी नहीं करना है क्योंकि हम आएंगे अर्ली मैन की स्टडी पे। और वो पीरियड किससे कॉन्टेम्पररी था, कौन से पीरियड से कॉन्टेम्पररी था? विल टॉक अबाउट द सेनोजोइक पीरियड। और जब सेनोजोइक पीरियड का जो एंड था, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द क्वाटरनरी, प्लीस्टोसीन और होलोसीन। मायोसीन में ये जो, इज इट विजिबल ऑनलाइन? नहीं, और अच्छा ठीक है, तो इसको समझ लिया, ये भी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको समझना है सेनोजोइक। ठीक है, तो मैं केवल उतना ही जूम करूंगा जितना हमें अभी अर्ली मैन के लिए समझना है। ठीक है, इज इट विजिबल नाउ? अब तो होना चाहिए।
एट द बैक, समझ में दिख रहा है? ठीक है, तो देखो सेनोजोइक जो पीरियड है इसमें प्लीस्टोसीन और होलोसीन ऑनवर्ड्स, तो जो प्लीस्टोसीन पीरियड देख रहे हो ना, कहां से स्टार्ट हो रहा है? 2.6 मिलियन, तो अभी ये 2.6 मिलियन ईयर्स अगो, तो some historians also says that 2.6, it's not 2.6, it's 5.6, it's 3.6, don't worry about that, ठीक है? तो केवल इतना याद रखना है जो प्लीस्टोसीन पीरियड था और जो होलोसीन पीरियड था, that is contemporary to the prehistoric period we are going to talk about, ठीक है? क्योंकि क्या हुआ, यही से स्टार्ट हुआ होमो इरेक्टस, सीधे अपराइट मैन, सीधे चलने वाला मानव, ठीक है? तो होमो इरेक्टस यहीं से प्लीस्टोसीन और होलोसीन आते आते हमें जो मॉडर्न फॉर्म है, और होलोसीन में जब हम इस टोटल प्लीस्टोसीन और होलोसीन की बात करेंगे तो प्लीस्टोसीन और होलोसीन दैट इंक्लूड्स द एंटायर प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है? और अब अगर दो पीरियड बताए गए और हमने कितने पीरियड पढ़े हैं? 3, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। तो प्लीस्टोसीन पीरियड ये है पेलियोलिथिक पीरियड, कॉन्टेम्परेरी, जियोलॉजिकल टाइमलाइन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। तो जो प्लीस्टोसीन पीरियड है ये पेलियोलिथिक है और होलोसीन है दैट इज नियोलिथिक पीरियड, एंड द मेसोलिथिक पीरियड इज द ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन प्लीस्टोसीन टू होलोसीन, ठीक है? दैट पीरियड्स आर इंक्लूडिंग 1000 and lakhs of years, ठीक है? तो अब 1000, when we talk about the 1000 and lakhs of year, it means we cannot mark any specific year to differentiate the Paleolithic and Neolithic. It includes thousands of years. तो ऐसा नहीं जैसे हम आज कहें 2023 आज मेरा है बर्थडे, 25 ईयर्स बाद मेरी एनिवर्सरी होगी, फिर 50 ईयर्स बाद फिर अनदर एनिवर्सरी, तो ऐसे इस टाइप से हमारे पास कोई स्पेसिफिक ईयर नहीं है। इसलिए ये जो ट्रांजिशन पीरियड है दे लास्ट लॉन्ग टू अप्रोक्सीमेटली 5000 ईयर्स। तो ये जो प्लेस्टोसीन पीरियड है और जो होलोसीन पीरियड है, इनके बीच का जो ट्रांजिशन पीरियड है दैट इज कॉल्ड एज मेसोलिथिक पीरियड व्हेन वी टॉक अबाउट द पीरियड ऑफ अर्ली मैन, कल्चरल एवोल्यूशन, ठीक है? और ये जैसे 2.6 मिलियन है, तो 2.6 मिलियन से लेके लगभग 12,000 मिलियन ईयर्स अगो, 12,000 मिलियन ईयर्स अगो टू 10,000 मिलियन ईयर्स अगो, ये पीरियड था मेसोलिथिक पीरियड। और फिर 10,000 ईयर ऑनवर्ड्स दैट इज होलोसीन मींस नियोलिथिक पीरियड। ये बात समझ में आ रही है? तो कैन वी रिलेट इट विद द प्री हिस्टोरिक टाइमलाइन ऑल्सो? ठीक है, तो ये जो क्वाटरनरी एरा है, इसमें जो प्लीस्टोसीन एपो है दैट डिपिक्ट्स द Paleolithic period, okay? And yes, हाँ, जो अभी बता रहे पहले वो सुन लो, ठीक है? हाँ, see here, Holocene that shows the Neolithic period, ठीक है? तो अब देखो, जैसे ही पैलियोलिथिक पीरियड से हम कहाँ गए? प्लेस्टोसीन से होलोसीन, और ये जो बीच का ईयर है ये दैट इज नॉट कैटेगराइज्ड विद रेस्पेक्ट टू द कल्चर, क्योंकि क्लाइमेटिक चेंज प्लेस्टोसीन से होलोसीन में हुए और एवोल्यूशन ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू द बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। लेकिन हमें ये जो बीच का पीरियड है इसमें कल्चरल चेंजेस देखने को मिले अर्ली ह्यूमन के रेस्पेक्ट में, इसलिए हमने उसमें एक और पीरियड ऐड किया, और वो क्या था? मेसोलिथिक पीरियड, क्योंकि जो ट्रांजिशन फेज था उसमें ह्यूमन की एक्टिविटीज में चेंजेस आए, ठीक है? तो प्लेस्टोसीन पीरियड में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं और होलोसीन पीरियड में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, यानी कि पेलियोलिथिक पीरियड हमने जो बताया और नियोलिथिक पीरियड में डिवाइड किया। लेकिन जो ट्रांजिशन फेज था, यानी कि ट्रांजिशन फेज विद रेस्पेक्ट टू द क्लाइमेटिक चेंजेस, ठीक है? और क्लाइमेटिक चेंजेस क्या? क्योंकि प्लेस्टोसीन पीरियड जो था वो था आइस एज,
ठीक है। और आइस एज से जब अर्थ वार्म होनी शुरू हुई, तो ऐसा तो है नहीं कि आपने ऐसे ही ऑफ किया और कूलिंग खत्म हो गई, ठीक है, तो ऐसा नहीं था। तो इट टुक अराउंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो अब देखोगे ना 2.6 मिलियन ईयर्स, मिलियन मींस लाख, तो 26 लाख ईयर्स, और कहां तक 0.01 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 10,000 ईयर्स अगो। तो ये जो इतना बड़ा फेज था पेलियोलिथिक और मेसोलिथिक का, तो मेसोलिथिक जो पीरियड है, जो कि अर्थ में क्लाइमेटिक चेंजेस देखने को मिले, इसलिए अर्ली मैन के एक्टिविटीज में हमको चेंजेस देखने को मिला। क्लियर है ये बात? तो क्लाइमेट चेंज हुआ तो हमें जो एक्टिविटीज में चेंज देखने को मिले, इसलिए हिस्टोरियंस ने उसको कैटेगराइज किया मेसोलिथिक पीरियड। तो ये जो ट्रांजिशन फेज था, दैट इज कॉल्ड एज मेसोलिथिक पीरियड। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमको ये पता है कि ये प्लेस्टोसीन इज वाज आइस एज, है ना, तो एट इफ वी टॉक अबाउट दीज टू एजेस, प्लेस्टोसीन एंड होलोसीन, तो प्लेस्टोसीन में कूलेस्ट फेज था अर्थ का, ठीक है। तो अगर कूलेस्ट फेज था, तो होलोसीन तक हम जब जाएंगे तो क्या इंटरप्रिटेशन निकालोगे? क्योंकि अर्थ वार्म हो रही थी, तो जो ये नियोलिथिक पीरियड था, दैट वाज द एंड ऑफ आइस एज, ठीक है। यानी कि मेसोलिथिक पीरियड से आइस एज का एंड स्टार्ट हो चुका था और नियोलिथिक आते आते फिनिश हो चुका था। तो जाहिर सी बात है कि जब आप क्लाइमेटिक चेंजेस देखोगे तो क्या होता है, बारिश होती है, तेज बारिश होती है, तो क्या करते हो, घर में ही बैठते हो। बहुत ठंड होती है तो क्या करते हो, कोशिश करते हो घर में बैठे, या फिर कोस्टल एरियाज में जाएं। बहुत ज्यादा जब गर्मी हो जाती है तो पब्लिक कहां देखने को मिलती है, हिल्स पे। बात समझ में? तो ऐसे ही जो अर्ली मैन थे, दैट आल्सो हैव हैड सम इंपैक्ट ऑफ द क्लाइमेट। तो क्लाइमेट की बेसिस पे हमें जो साइट्स हैं, जिनसे हमें, क्योंकि हमें एविडेंसेस कहां से मिले हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से, तो इसलिए जो साइट्स हैं उनका स्प्रेड उसी के अकॉर्डिंग हमको देखने को मिला है। क्योंकि आप सब इमेजिन कि जब आइस एज रही होगी तो ठंड से बचना होगा उनको, तो कहां रहने लगे होंगे, केव्स में रहने लगे होंगे, और ज्यादा दूर ना जाना पड़े, इसलिए क्या करते होंगे, केव्स, ऐसी केव्स ढूंढते थे जहां पर आसपास क्या हो, फॉरेस्ट हो, जिससे कि उन्हें क्या मिले, फूड्स भी मिले और एनिमल्स भी मिले। और साथ साथ में इनको मारेंगे कैसे, स्टोन टूल्स, तो उन्हें स्टोन टूल्स की अवेलेबिलिटी भी हो, यानी कि रॉ मटेरियल उन्हें केवल फूड के लिए नहीं चाहिए थे, उन्हें टूल्स बनाने के लिए भी चाहिए थे। तो अगर सोचो नाउ दैट वी हैव ओनली टू कैपेबिलिटीज एट दैट टाइम, अब केवल दो कैपेबिलिटीज थी, क्या, एक तो हंटिंग स्किल्स और एक सेटलमेंट, ठीक है। तो हंटिंग स्किल्स आल्सो इंक्लूड द टूल्स थे, वो हमें फूड प्रोसेसिंग के लिए भी यूज करने होते थे। तो जो अब स्किल्स, अब इन्हीं स्किल्स में जब डेवलपमेंट होगा, क्योंकि स्किल्स अवेलेबल क्या थी उस टाइम पे, कि हम रहते कहाँ थे, शेल्टर्स क्या था, और हमारा खाने पीने का, और जो अदर एक्टिविटीज हैं उनके लिए हम क्या सोर्सेज यूज करते थे। तो जब हम सोर्सेज में टेक्नोलॉजी, क्योंकि जैसे जैसे जो अभी होमो सेपियंस की जो मॉडर्न स्पीसीज है, ठीक है, वो होमो इरेक्टस से होमो सेपियंस तक आते आते उनके ब्रेन डेवलप हुए, ठीक है। तो जब ब्रेन डेवलप हुए, इनका जो टेक्नोलॉजिकल स्किल है वो डेवलप हुआ। तो जाहिर सी बात है कि वो हम कैसे पता करेंगे कि वो स्किल डेवलप कैसे हुई, उनके जो टूल्स हैं, उनके जो डिजाइन्स हैं, इसका मतलब उनके अंदर दिमाग आने लगा कि इनको कैसे और शार्प करें, कैसे स्किल्स को इंप्रूव करें। तो ये जो स्किल्स का इंप्रूवमेंट था, उसकी बेसिस पे इन टाइमलाइंस को डिवाइड किया गया। बात समझ में? तो यानी कि पेलियोलिथिक पीरियड में देखो, पेलियोलिथिक पीरियड कैसा रहा होगा, जब बिल्कुल लेम स्किल रही होगी ना, बहुत कुछ नहीं आता होगा, ठीक है, ऐसे पत्थर उठाया और मारना शुरू किया एनिमल्स को, ठीक है। तो पत्थरों को वेपन में कन्वर्ट नहीं किया, ठीक है। तो पत्थरों को फिर जब स्किल आई, तो उन्होंने पत्थरों को, जो स्टोन्स थे, उनको स्किल में, जो उनको वेपन्स में डेवलप करने की स्किल डेवलप हुई। तो जितने शार्प वेपन बनते गए, जितने टेक्नोलॉजिकल वेपन बनते गए, उसके बेसिस पे ये लॉन्ग पीरियड, और ऐसा नहीं हुआ कि कुछ सालों में हुआ, ये कई सालों में हुआ, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगे। इसीलिए इन पूरे पीरियड्स को जहां पे हमें सेम पैटर्न मिला, तो जो हिस्टोरियंस थे, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, वो क्या, उन्होंने देखा कि एक साइट पे जब हमने लेयरिंग स्टार्ट करी, when they started excavation, they found that one layer have some sort of similar type of stones, ठीक है। इसके बाद जब नई लेयर बनाई, नीचे की लेयर हटाई, तो देखो हिस्ट्री में आर्कियोलॉजिकल साइट्स में जो
ओल्डेस्ट एविडेंसेस हमें कहाँ मिलेंगे, अपर लेयर में या लोअर लेयर में? वेरी गुड, इसीलिए उनको लोअर पैलियोलिथिक कहा गया, क्योंकि लोअर लेयर भी थी और ओल्डेस्ट। लोअर पैलियोलिथिक मतलब पैलियोलिथिक में भी डिवाइड किया, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें जो टाइमलाइन मिला और हमें जो पैटर्न मिला वो अलग अलग था। तो क्लाइमेटिक चेंजेस, पैलियोलिथिक में तो सेम क्लाइमेट था ऑलमोस्ट, लेकिन पैलियोलिथिक को जो डिवीजन मिला लोअर अपर मिडिल, दैट इज बेस्ड अपॉन द चेंजेस इन द टूल्स with respect to size and with respect to the skill, कि साइज भी चेंज हुआ और उसमें स्किल क्या डेवलप करी उन्होंने, किस टाइप के, और शार्पनेस, क्या शार्पनेस लेके आए। इसके बाद सिमिलर जो पैलियोलिथिक मेजो पैलियोलिथिक में जो लोअर अपर और मिडिल डिवीजन किया, इसके बाद जब मेसोलिथिक में आए तो वो दैट वाज बेस्ड अपॉन द क्लाइमेटिक चेंज, और मेसोलिथिक से जब न्यूलिथिक में आए दैट वाज बेस्ड अपॉन द क्लाइमेटिक एज वेल एज देयर फर्दर स्किल्स जो डेवलप की उन्होंने, एग्रीकल्चर डेवलप करी, सेटल्ड लाइफ डेवलप की। तो उसकी ये बात समझ में है कि टाइमलाइन कैसे पैरेलल है। तो जियोलॉजिकल टाइमलाइन और साथ साथ में ये सिमिलर पीरियड जो हम देखते हैं होलोसीन और प्लेस्टोसीन, ये पीरियड, दैट पीरियड डिनोट्स द प्री हिस्ट्री पीरियड। ठीक है, तो एक बार ये पीरियड नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पीरियड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार सिंपली ये पीरियड केवल जैसे बता रहा हूं वैसे नोट करना। जियोलॉजिकल टाइमलाइन विल पुट द हेडिंग एंशिएंट इंडिया। हाँ, यस, ठीक है, दिस इज द लेटेस्ट वन। ठीक है, एंशिएंट इंडिया, नोट डाउन जियोलॉजिकल टाइमलाइन। Geological timeline and start with the Precambrian age. First Precambrian age. First Precambrian age. Note the timeline 4.5, 4.6, 4.5 oblique 4.6, कहीं कहीं 4.5 भी मिलेगा, 4.6 भी मिलेगा। ठीक है, लार्जली यू विल फाइंड 4.6। ठीक है, 4.6 और राइट लाइक दिस बिली, देखो बिलियंस ईयर्स अगो, ओके, और मिलियंस ईयर्स अगो एंड 1000 ईयर्स अगो। फॉर 1000 वी यूज के। ठीक है, तो ऐसे आपको नोट करना है। तो प्री कैम्ब्रियन 4.6 बिलियन ईयर्स अगो टू 590 मिलियन ईयर्स अगो, 590 मिलियन ईयर्स अगो। Okay, then the next age would be Paleozoic. Paleozoic. Paleozoic period. 590 million years ago to 250 million years ago. Then Mesozoic period. Mesozoic period. 250 million years ago, MNYA dash 65 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, अलग अलग सोर्सेस पे आपको अलग अलग टाइमलाइन मिल सकता है। ठीक है, दैट्स पॉसिबल। 65 मिलियन ईयर्स अगो। देन नेक्स्ट सेनोजोइक, सेनोजोइक एरा, सेनोजोइक एरा 65 मिलियन ईयर्स अगो टू 2 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, अब स्टार्ट होगा जब हमें अर्ली एविडेंसेस मिले हैं और अपने एंसेस्टर्स के, यानी कि एविडेंसेस ऑफ होमिनिड्स,
ठीक है, तो वहीं से स्टार्ट होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंसेस ऑफ होमिनिड्स, ठीक है, जो कि मॉडर्न होमोसेपियंस हैं उनका उनसे रिलेट नहीं करता है, ठीक है, जो अर्ली होमिनिड्स थे ओरंगुटैन एंड ऑल, तो वो स्टार्ट होगा कहाँ से, पेलियोजोइक पीरियड से। इसलिए हिस्टोरियंस ने अपनी स्टडी के लिए, ह्यूमन स्टडी के लिए जो उनके लिए इंपॉर्टेंट एरा था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, पेलियोजोइक एरा। तो उन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया। पहला पेलियोजोइक को बोला प्राइमरी एपो, ठीक है, EPOCH। तो जहां पे आपने पेलियोजोइक नोट किया है उसके आगे डैश लगा के ब्रैकेट में लिखिए प्राइमरी एपो, प्राइमरी एपो, EPOCH. Eras are divided into further in epo. So Paleozoic was primary, then Mesozoic was secondary epo. Did you note down Cenozoic with timeline? Okay. Now Cenozoic में 2 कैटेगरी बनाना, ठीक है। Cenozoic जहाँ पे लिखा ना आपने उसके नीचे ऐसे Cenozoic लिखा होगा ना, उसके नीचे लाइन बनाना और ऐसे लिखना tertiary epo and quaternary epo. This one, quaternary epo, tertiary epo, then quaternary epo. And when you write quaternary epo, write down the timeline 2.6 million. 2.6 million. टर्शरी एपो में कोई टाइमलाइन मत लिखो, ठीक है। क्वार्टरनरी एपो 2.6 million years ago to now onwards, ठीक है। अब जहां पर क्वार्टरनरी लिखा है ना उसको फर्दर डिवाइड करो, क्योंकि हमने क्वार्टरनरी पीरियड में 2 पीरियड की बात करेंगे, होलोसीन और प्लीस्टोसीन, ठीक है। देन नोट डाउन अंडर द क्वार्टरनरी, ठीक है, क्वार्टरनरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी एपो रिप्रेजेंट्स होलोसीन और प्लीस्टोसीन, होलोसीन एंड प्लीस्टोसीन, एंड राइट इन द रिवर्स ऑर्डर, पहले प्लीस्टोसीन लिखो और देन होलोसीन, क्योंकि ये रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है ना। तो पहले प्लीस्टोसीन, ठीक है, प्लीस्टोसीन 2.6 million years ago, first Pleistocene 2.6 million years ago to 10,000 years ago, YA. Then Holocene period 10,000 years ago to now onwards, 10,000 years ago, Pleistocene, Holocene, sorry, ठीक है। तो अब मुझे बता सकते हो कि प्लीस्टोसिन जो एपो है दैट रिप्रेजेंट्स विच पीरियड विद रिस्पेक्ट टू द अर्ली मैन, Paleolithic, right? And Holocene represents Neolithic, and the transition of this area is known as the Mesolithic period, ठीक है। अब स्टार्ट करो, एक नए चार्ट बनाओ एंड राइट डाउन द स्टोन एज। तो जहां पे प्लेस्टोसिन और होलोसिन लिखा है वहीं पे ब्रैकेट में नोट कर लेना दैट रिप्रेजेंट्स पेलियोसिन, जो प्लेस्टोसिन रिप्रेजेंट्स द पेलियोलिथिक पीरियड एंड द होलोसिन रिप्रेजेंट्स द नियोलिथिक पीरियड, so that you can correlate the geological timeline with the prehistoric period. Is it clear? Now I'll put the heading Stone Age. Next page, and on the prehistoric period. And first,
Paleolithic ठीक है, अगर आप चाहते हो तो ये भी लिख लो. You will have some brief idea about that. 2.6 million years ago to approximately 1 lakh years ago. Then 1 lakh years ago to approximately 40,000 years ago, and 40,000 years ago to 12,000. तो समझ में Paleolithic starts with 2.6 approximately million years ago to 12,000 years ago, and further it was divided into three parts: lower, middle, and upper. 2.6 to 1 lakh years ago, 1 lakh years ago to 40,000 years ago, and 40,000 years ago to 12,000 years ago. और फिर वहां से क्या स्टार्ट होगा? मेसोलिथिक पीरियड, और मेसोलिथिक पीरियड के बाद न्यूलिथिक पीरियड 10,000 ऑनवर्ड्स. तो लार्जली जो डिफरेंस है पेलियोलिथिक से मेसोलिथिक साइड में, तो आप देखोगे जो टूल्स हैं, तो पहला जो टूल्स के साइज, शेप, शार्पनेस, उसमें जो डिफरेंसेस आए. हंटिंग स्किल्स, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, पॉटरी, whether they were using the cooking or not. ठीक है, एग्रीकल्चर, कल्टीवेशन, सेटलमेंट्स, हम ये सब डिस्कस करेंगे जिसके बेसिस पे ये डिफरेंशिएशन बने. तो जब पेलियोलिथिक पीरियड की बात करेंगे तो ये पीरियड ऐसा था जब द अर्ली मैन वर नोमैडिक, they were completely dependent upon their hunting skills and they were doing gathering only. तो plants और animals, तो जो अर्ली मैन थे ड्यूरिंग द पेलियोलिथिक पीरियड दे वर डूइंग हंटिंग ओनली ऑफ एनिमल्स एंड गैदरिंग ऑफ प्लांट्स. तो प्लांट्स और एनिमल दो रेस्पेक्ट में बात करेंगे. तो प्लांट्स के लिए क्या करते थे? वो हंटिंग, और सॉरी एनिमल्स के लिए क्या करते थे? हंटिंग. प्लांट्स को गैदर करते थे. मेसोलिथिक पीरियड आते आते, जब मेसोलिथिक पीरियड आया, मेसोलिथिक पीरियड में क्या कल्चरल चेंजेस आए अर्ली मैन की लाइफ में, वो डिस्कस करेंगे. और वो क्या चेंजेस आए लार्जली एट द एंड ऑफ मेसोलिथिक पीरियड. ठीक है, वो उन्होंने डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया, एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स ऑल्सो. आप सोचोगे कि सर ये डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स क्या है? तो कलेक्शन ऑफ प्लांट्स, जो गैदरिंग करते थे, जो गैदर करके लाए और वो खा लिया.
प्लांट्स का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया उन्होंने, कि जो प्लांट्स थे, कल्टीवेशन दैट इज डिफरेंट थिंग, प्लांट्स का जो डोमेस्टिकेशन था, इसका मतलब ये है कि उन्होंने प्लांट्स जो या फ्रूट्स जो गैदर किए, जो कलेक्ट किए, पहले क्या होता था, आज लेके आए और आज खा लिया, कल फिर निकलेंगे ढूंढने के लिए, ठीक है। फिर क्या किया उन्होंने, सरप्लस प्लांट्स और फ्रूट्स को गैदर करना स्टार्ट किया, और जब नियोलिथिक पीरियड तक आए तो उन्होंने कल्टीवेशन स्टार्ट किया। तो कल्टीवेशन स्टार्ट किया तो इसका मतलब है दे आर नाउ लेस डिपेंडेंट अपॉन हंटिंग। लेकिन हम जब भी व्हेनेवर वी टॉक अबाउट दीज चेंजेस in the history, it does not mean when they started the touch screen phone, it does not mean that they destroyed or stop using the earliest version of phone। ये बात समझ में आई। तो इसका मतलब है कि जब भी उन्होंने टेक्नोलॉजिकल या अपने स्किल्स डेवलप किए, तो क्योंकि दे वर स्प्रेडेड इन कम्युनिटीज, तो एट सम प्लेसेस some skills were still dominating while at some places there are some new skills developed। तो इसका मतलब ये है कि जब उन्होंने डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया तो डोमेस्टिकेशन के साथ साथ वो हंटिंग भी कर रहे थे। तो इसका मतलब ये कि जो भी नए स्किल्स डेवलप हुए वो एक एड ऑन था, ना कि जो ओल्ड स्किल्स थी उनको कंप्लीटली ऑब्सोलीट कर दिया। आर यू गेटिंग दैट? सो जो अब दैट इज फॉर एग्जामिनेशन पर्पस, कि जब भी कोई नई स्किल की बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि एट व्हाट पीरियड इट वाज स्टार्टेड। जैसे मेसोलिथिक के एंड में पॉटरी डेवलप हुई, कब कब डेवलप हुई? वाइड स्केल दैट इज डेडिकेटेड टू द न्यूलिथिक पीरियड, वाइड स्केल पॉटरी डेडिकेटेड टू न्यूलिथिक पीरियड। लेकिन मैंने क्या बताया कि ये पूरा ट्रांजिशन पीरियड है, ऐसा नहीं है कि मिडिल आ गया, मिडिल पीरियड कोई पर्टिकुलर ईयर था जहां से उन्होंने कल्टीवेशन स्टार्ट किया। यानी कि न्यूलिथिक पीरियड इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू द एग्रीकल्चर, बट एट द लास्ट एज ऑफ द मेसोलिथिक, व्हेन मेसोलिथिक वाज एंडिंग, वी फाइंड द ट्रेसेस ऑफ कल्टीवेशन। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर ये 10,000 ईयर्स अगो, इट मींस दिस अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो जब पॉटरी इज डेडिकेटेड टू द न्यूलिथिक पीरियड, तो इसका मतलब ये नहीं कि न्यूलिथिक पीरियड से ही पॉटरी स्टार्ट हुई। स्टार्ट कब हुई? तो अर्ली एविडेंसेस हमें कब मिले? लेटर मेसोलिथिक पीरियड में। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉटरी वी फाइंड इन द न्यूलिथिक पीरियड। ठीक है, तो कुछ स्किल्स पैलियोलिथिक जो अर्ली मैन थे, दे आर कंप्लीटली नोमैडिक, दे हैड नो स्किल्स। केवल एक इन्वेंशन हुआ था, वो था at the last, at the upper Paleolithic age, we will find that the traces, हो सकता है पहले भी फायर डेवलप हुआ हो, लेकिन हमें traces of ashes found in the upper Paleolithic period। तो हंटिंग और गैदरिंग के अलावा जो हमें कुछ नई इंफॉर्मेशन मिली है वो क्या है? इन्वेंशन ऑफ फायर। ठीक है, तो हो सकता है पहले भी हुआ हो, लेकिन हमें अर्ली एविडेंसेस कब मिले हैं? लेटर पैलियोलिथिक पीरियड में। ठीक है, इसके बाद जब मेसोलिथिक में आते हैं, तो यानी कि जो पैलियोलिथिक पीरियड की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम कुछ टूल्स की बात भी करेंगे। तो जो पहले टूल्स होते थे उनके पास, वो बहुत ही ऑर्डिनरी टूल्स होते थे, पॉलिश्ड नहीं होते थे। तो उन्होंने क्या किया? पत्थरों को पत्थर से तोड़ा, ठीक है, और उसी से अपने टूल्स बनाए। तो अर्ली जो टूल्स थे, देवर ओनली 3 to 4 टाइप्स ऑफ टूल्स। तो उसमें हैंड एक्स होती थी, क्लीवर्स होते थे, चॉपर्स होते थे। तो हैंड एक्स क्या होती थी? देखो, जब तोड़ते थे पत्थरों को, ठीक है, देखो ठीक है, ये कुछ देखो इस टाइप के, ठीक है। इज इट विजिबल? इज इट नॉट विजिबल? ठीक है, अब देखो ये जो चॉपर, हैंड एक्स, क्लेवर, ठीक है, तो देखो साइज पे मत जाना अभी इस पिक्चर में, ठीक है, कि देखने में तीनों सेम लग रहे हैं, सेम साइज के, लेकिन सेम साइज के नहीं है। ठीक है, जो पत्थर को जब पत्थर से तोड़ते थे, ठीक है, तो बड़े पत्थर पर्पस क्या होता था? उस पत्थर को छोटा साइज करना, ठीक है, उसको उसमें जो हंटिंग कैपेसिटी है वो डेवलप करना। तो जो एक पत्थर का जो बड़ा पार्ट होता था, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फ्लेकिंग प्रोसेस। तो जो अर्ली मैन थे वो फ्लेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते थे, और फ्लेकिंग प्रोसेस में जो स्टोन था, उस स्टोन के जो पार्ट होते थे, तो स्टोन के पार्ट का जो बड़ा लार्ज पार्ट होता था, दैट इज कॉल्ड कोर्स।
ठीक है, और जो छोटे छोटे पार्ट निकलते थे दे वर कॉल्ड फ्लेक्स। ठीक है, तो छोटे छोटे पार्ट का मतलब ये कि ऐसे छोटे भी नहीं कि वो हंटिंग ना कर सके। हंटिंग स्किल्स, जैसे उन्होंने मान लिया हैंड एक्स था, हैंड एक्स वाज द कोर पार्ट ऑफ द स्टोन। एक पत्थर लिया, ठीक है, और उसको दूसरे पत्थर से तोड़ा, तो एक छोटा पार्ट होगा, एक बड़ा पार्ट होगा। जो बड़ा पार्ट था दैट वाज हैंड एक्स, और उसको शार्प किया। इसको किलिंग के लिए यूज करते थे, एनिमल्स को हंटिंग के लिए। ठीक है, अब मार तो दिया, अब उसको काटना भी तो है, इसकी स्किनिंग भी तो करनी है। तो चॉपिंग ऐसे में लेता है चॉपर। तो चॉपर टाइप के टूल्स बनाए गए जिनको चॉप करने के लिए, एंड दैट वाज क्लीवर टू स्किन द फ्लैश। ठीक है, तो और लार्जली देवर 3 टाइप्स ऑफ टूल्स, पहले इतने ही टूल्स होते थे। फिर क्या हुआ, अब देखो इन टूल्स में शार्पनेस, अब लार्जली यही टूल्स थे, लेकिन टूल्स में चॉपर और शार्प हुआ, हैंड एक्स और शार्प किया, क्लेवर और शार्प किया, और फिनिश्ड किया उसको। तो इसकी बेसिस पे हमें अपर, लोअर, मिडिल, तो ये जो पैलियोलिथिक एज थी इसमें लोअर, मिडिल, अपर, ये हमें सेम टूल्स मिले लेकिन अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग शार्पनेस के। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि ये लेयर्स अलग अलग थी, इसलिए हिस्टोरियंस ने, जोग्राफर्स ने उसको डिवाइड किया लोअर पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक में। ठीक है, लोअर को। तो अब जब आप देखोगे कि अदर देन दैट, देखो ये, हाँ मिडिल, देखो मिडिल में देखो पत्थर और पतले होते गए और शार्प होते गए, जिससे कि जो क्लीवर्स है, जो चॉपर्स हैं, उनके शेप देखो अभी कैसे हो गए। ठीक है, सिमिलरली, ठीक है, तो ये मिडिल पैलियोलिथिक, और ठीक है, तो ये सारे शेप्स हैं, देखो आप स्टोन्स के देख सकते हो कि जो हमने पहले देखा, जो लोअर पैलियोलिथिक क्लास का देखा और अब देखा, तो हमें कुछ ज्यादा फाइन स्टोन्स देखने को मिल रहे हैं। तो दैट वाज द डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो हाँ, ये बोरस स्टार्ट हुए। बोरस भी किलिंग के लिए यूज करते थे, किलिंग और स्किनिंग के लिए। ठीक है, तो दीज आर द स्टोन्स, और इन स्टोन्स की बेसिस पे ये जो लार्जली जो पैलियोलिथिक का डिवीजन किया गया। मेसोलिथिक में स्टार्ट हुआ कि और कौन 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 सी स्किल्स आई, तो पॉटरी डेवलप की। तो लोअर में हमने क्या सीखा कि लोअर में क्या मेजर इन्वेंशन था, वो था फायर का। ठीक है, पैलियोलिथिक एज में। इसके बाद पैलियोलिथिक एज से जब मेसोलिथिक में आएंगे तो नए इन्वेंशन क्या हुए, पॉटरी डेवलप हुई, डोमेस्टिकेशन लास्ट फेज में स्टार्ट हुआ। हमें कुछ पॉट, जब पॉटरी के प्रूफ मिले तो हमें कुछ पॉट्स मिले जो ऐसा लगा कि जैसे कि वो गैदर आसपास कंपटीशन था, एंड दे वर लुकिंग लाइक दे हैव कुक्ड समथिंग ओवर दैट, मतलब मीट को कुक करना स्टार्ट किया। तो एक किचन के एविडेंसेस मिले कि कहीं ना कहीं उन्होंने एक प्लेस बनाया जहाँ पे फायर रखा और वो पॉट्स किचन पर्पज से यूज हुए। तो एक ये स्टार्ट हुआ। इसके बाद जब बोन एंड एरो डेवलप हुआ मेसोलिथिक पीरियड में। अब बोन एंड एरो का मतलब ये नहीं कि जो आज लेटेस्ट बोन एंड एरो वैसे नहीं, उन्होंने क्या किया, ये जो जो छोटे छोटे फ्लेक्स थे, उन फ्लेक्स को, आई एम टॉकिंग अबाउट द मेसोलिथिक पीरियड, वहां तक आते थे, इन्होंने टूल्स को शार्प किया। ठीक है, और टूल्स को शार्प करने के बाद वुडन अटैचमेंट या फिर बोन टूल्स, मेसोलिथिक पीरियड के लास्ट एज में और न्यूलिथिक के आते आते हमें बोन टूल्स भी मिलने स्टार्ट हो गए थे। अभी कैसे टूल्स थे, स्टोन टूल्स थे, इसके बाद बोन टूल्स मिलने स्टार्ट हुए, और बोन टूल्स एंड वुडन, वुडन को यूज किया और थ्रेड के साथ बांध के, ठीक है, और बो एंड एरो की तरह उसको यूज किया। अब मुझे बताओ कि जब बो एंड, अब उन्होंने वुडन स्टिक में इसको अटैच किया, जो स्टोन टूल्स थे या बोन टूल्स थे उसको आपस में अटैच करके और हंटिंग कर रहे हैं, तो कौन सी स्किल डेवलप हो सकती, क्या कर सकते होंगे वो लोग। देखो एनिमल हंट करने तो ठीक है, तो एनिमल हंटिंग तो कर सकते हो इन टूल्स को, आगे आपने एक तरीके से स्पीएस बना लिया, ठीक, और उसको यूज किया। तो एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई इससे, जिससे उन्होंने अपने जो हंटिंग स्किल को और वेरिएंट किया। वो कैसे, थ्रू फिशिंग। अब उन्होंने फिशिंग स्टार्ट करी उससे। ठीक है, जो स्मॉल फ्लेक्स थे उसको वुडन पार्ट में फंसाकर और फिशिंग स्टार्ट की। तो जो जो मेसोलिथिक पीरियड था इज आल्सो डेडिकेटेड टू स्टार्ट ऑफ फिशिंग। तो अब ऐसे, इसीलिए अभी कल्चरल डेवलपमेंट जो हुए लाइफ में, तो इसकी बेसिस पे हम आए पेलोलिथिक से मेसोलिथिक में।
और फिर मेसोलिथिक से जो नए कल्चरल डेवलपमेंट है, यानी कि कम्युनिटी एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया, कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया, तो इट मीन्स विल टॉक अबाउट सेटल्ड लाइफ। और जब सेटल्ड लाइफ होगी तो क्योंकि पहले नोमैडिक थे, ठीक है, तो हमें बरियल्स भी बहुत ज्यादा स्प्रेडेड रहे होंगे, तो हमें बरियल्स नहीं मिले। लेकिन न्यूलिथिक पीरियड आते आते क्योंकि सेटल्ड लाइफ स्टार्ट हो गई थी, तो जहां डेथ होगी वहीं कहीं आसपास बरियल्स मिले होंगे, तो हमें बरियल्स भी मिलने स्टार्ट हो गए, मतलब ग्रेवयार्ड्स, डेथ हुई तो हमें बोन्स हैं वो मिलने स्टार्ट हुई। तो न्यूलिथिक पीरियड में ये नए डेवलपमेंट आए और इसी की बेसिस पे हमने ये कैटेगराइज किया। तो न्यूलिथिक पीरियड में सेटल्ड लाइफ, ठीक है, एग्रीकल्चर, कल्टीवेशन, और कहीं कहीं तो कुछ प्रूफ, क्योंकि ये पीरियड जब न्यूलिथिक पीरियड चलेगा तो न्यूलिथिक पीरियड में अभी तक हमको मेटल नहीं मिला है, लेकिन एट द एंड ऑफ न्यूलिथिक पीरियड वी विल फाइंड द ट्रेसेस ऑफ मेटल्स आल्सो। एंड व्हाट वाज द अर्ली मेटल? कॉपर। वेरी गुड। तो न्यूलिथिक के एंड तक आते आते हमें क्या मिला? दो अर्ली मैन स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द मेटलर्जी, तो दे फाउंड कॉपर, और जब कॉपर उनको मिला तो यहीं से स्टार्ट होगा मेटल एज, ठीक है, कहां? न्यूलिथिक एज ऑनवर्ड्स। तो अभी तक जो 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 स्टोन्स थे, जो बोन्स थे, दे वर यूज्ड एज टूल्स। और इसके बाद न्यूलिथिक पीरियड के बाद हमको पता है कि न्यूलिथिक पीरियड के बाद हमें क्या पढ़ना है नेक्स्ट? प्रोटो हिस्ट्री। और वो क्या थी? आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि हमें वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे मिले, आपको पता होगा ना, हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो जो वेस्टर्न इंडिया है उसी के आसपास, लेकिन साथ साथ में कुछ और भी तो कहीं हो रहा होगा ना एंटायर इंडिया में। तो एंटायर इंडिया में जो हमें कल्चर्स अलग अलग देखने को मिले हैं विद रेस्पेक्ट टू द यूज ऑफ टूल्स मेड अप ऑफ मेटल्स, और वो मेटल क्या था? कॉपर। तो इसीलिए आईवीसी भी चलेगा, जो एक पर्टिकुलर रीजन है, जो वेस्टर्न इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वहां पे हड़प्पन कल्चर डेवलप हुआ, और सेम टाइम पीरियड में विल फाइंड दैट द चाल्कोलिथिक कल्चर डेवलप्ड। क्योंकि अर्ली मैन डेवलप्ड हो चुका था, सेटल्ड लाइफ थी, इसलिए आईवीसी के साथ साथ, क्योंकि आईवीसी में हमें एक सिविलाइजेशन मिली है, बट ये जो चाल्कोलिथिक है इसको हम कल्चर बोलते हैं, क्योंकि हमें कोई सिविलाइजेशन नहीं मिली। क्यों? क्योंकि कोई सेटल्ड सिनेरियो नहीं मिला हमको। क्या मिला? कम्युनिटी लाइफ मिली, तो इसलिए कल्चर बोलते हैं। तो अलग अलग प्लेसेस पे, ठीक है, राजस्थान के अलग अलग प्लेसेस पे, एमपी के अलग अलग प्लेसेस पे हमें चाल्कोलिथिक कल्चर मिला, और वो कल्चर दैट विल रन पैरेलल टू द आईवीसी। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो कैसे अब नया इन्वेंशन क्या हुआ जब न्यूलिथिक पीरियड, स्टोन एज के बाद नया इन्वेंशन क्या हुआ? मेटल। और मेटल क्या? कॉपर। तो कॉपर were used by the Chalcolithic period, while the largely bronze was used by the people of आईवीसी। ठीक है, तो अब एक बार लिखना स्टार्ट करो कि पेलियोलिथिक में क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, सो फर्स्ट पुट द हेडिंग पेलियोलिथिक एज। Put the timeline also. And first, lower Paleolithic age. First, put the heading A, lower Paleolithic age. Climate. The climate of this age was represented as Ice Age, and wherever note the heading Paleolithic age and the lower Paleolithic, and in the bracket also note down the men were hunters and gatherers. In the bracket note down hunters and gatherers. Hunters and gatherers. और फिर मेसोलिथिक में क्या हो जाएंगे? मैंने क्या बताया? क्या स्टार्ट होगा? डोमेस्टिकेशन। तो देन दे विल बिकम इन मेसोलिथिक एज दे विल बिकम हंटर्स एंड हर्डर्स, एंड इन न्यूलिथिक एज दे विल बिकम food producers.
ठीक है. So this is the cultural evolution largely in all these three periods. ठीक है. So note down in this age, हाँ क्या नोट किया? Climate of this age was represented as ice age. Next point. In this age, human used stones for hunting, which was found in nature and already had cutting edges, full stop. They used tree branches, comma leaves, and stones to make shelters for living. They ate, next point, they ate plants, and meats, and may had also eaten flesh of dead animals, may had eaten flesh of dead animals left behind by other larger predators. Early men had no knowledge of house building, comma cultivation, as they were largely lived on hunting. Full stop. Hence, during this period, tools became very important for their survival. Full stop. Next point. During this time, the tools were unpolished, comma, undressed, and rough stones. अनड्रेस मतलब केवल स्टोन्स नेकेड यूज होते थे, ठीक है, किसी के साथ अटैच करके नहीं, जैसे हमने बाद में देखा ना वुडन में अटैच करके किया, दैट्स द मीनिंग ऑफ अनड्रेस्ड. एंड रफ स्टोन्स
and rough stones. Next point, put the heading, small heading, flaking process, underline that, flaking process, FLA, flakes होते हैं, flakes, flaking process. A stone tool made out of the largest piece, and in bracket move down core, largest piece, that is core, C-O-R-E, core, bracket close, is largest piece, core, is called core tool. Core tool, for example, hand axe, H-U-N-D, hand, A-X-E, axe, comma, while tools made out of the smaller pieces in bracket flakes, bracket close, are called flake tools. ठीक है, तो अब ये जो फ्लेकिंग प्रोसेस है इसका पता कैसे लगा, हमें जो कोर्स मिले, ठीक है, ठीक है, तो अब जब स्टोन को ब्रेक किया तो एक बड़ा पार्ट था ना, दैट इज कॉल्ड कोर, दैट इज फ्लेक. हियर यू विल फाइंड, जब पत्थर तोड़ते हैं ना तो कुछ स्कार्स मिलते हैं ना, पत्थर को तोड़ा तो एक उसका जो सरफेस होगा, एंड दैट सरफेस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट सरफेस, राइट, यू विल फाइंड दिस स्कार्स. सो दिस स्कार्स symbolizes that this is not the original stone, right? The flakes were obtained from by hitting over the stones. That is how this is the flaked stone is called, right? It means वो तोड़ा गया होगा. तो this is how the interpretation made up by the archaeologist. ठीक है, तो उनको अगर किसी भी स्टोन पे स्कार्स मिलते हैं ऐसे तो इनको तोड़ा गया, ठीक है, तोड़ने पे, और जो डिप्लीट होते हैं दे आर डिफरेंट स्कार्स, ठीक है, कि वो गल के धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन अगर तोड़े गए होंगे तो स्कार डिफरेंट होंगे. तो दिस आर द फ्लेक्स, द कोर, ठीक है, तो इनका भी टूल्स बना और कोर जो मेजर ऑब्जेक्ट्स थी, एंड दिस इज दे आर कॉल्ड फ्लेक स्कार्स. ठीक है, no down. Next point, early Paleolithic tools were fairly large tools. Early Paleolithic tools were fairly large tools. Underline that, large tools, made of largely quartzite rock. It's a type of rock, okay, quartzite rock. So made of quartzite rock, hence the early men were called quartzite men. Again put the small heading, types of tools.
chopper for chopping, cleaver, note down, chopper for chopping, cleaver for skinning, hand axe, skinning, skin, skin out the flesh, skinning, and hand axe for hunting and digging, for hunting and digging. Hunting and digging. Next point. These tools were roughly triangular in shape, with rounded size. अब आगे क्या होगा ना, फ्लैट होने स्टार्ट हो जाएंगे, जब शार्प होने स्टार्ट हो जाएंगे ना, फ्लैट, ठीक है, यहाँ पे गोल पत्थर होते थे, ठीक, राउंडेड साइज and sharp on one end, dash only at next point, only at later stage, comma, that they attained the knowledge of fire, bracket, in bracket note down, traces of fire ashes लिख लोगे, ASHES, fire ashes found in Kurnool, Andhra Pradesh, right? Bracket close. Then note down the major sites, एंड जो साइट्स अभी हैं उसमें कुछ साइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जैसे सोन रिवर, बेलन रिवर, ठीक है, बोलन पास, मेहरगढ़, ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। तो सोन नोट डाउन, सोलन रिवर वैली, सोन नॉट सोलन, दैट इज बोलन पास, ठीक है, सोन SOAN, सोन रिवर वैली, पंजाब, पाकिस्तान, कॉमा, डीडवाना राजस्थान, DIDWANA, डिडवाना राजस्थान, बेलन बेलन वैली, BELAN, बेलन वैली, कॉमा, मिर्जापुर, यूपी। ये प्लेसेस ऐसे हैं, सोन वैली, दीदवाना, बेलन वैली, you will find that these sites are having all the evidences of all the sites of stone ages, ठीक है।
पेलियोलिथिक के भी मिलेंगे आपको, मेसोलिथिक के भी मिलेंगे और न्यूलिथिक साइट्स के भी एविडेंसेस मिलेंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग नेक्स्ट नोट डाउन भीम बेटका केव, सबको पता होगा ना, भीम रॉक शेल्टर्स ऑफ भीम बेटका केव्स, भीम BHIM भीम बेटका केव्स, ठीक है, MP, इट इज इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP, ठीक है, भीम बेटका केव्स। Now make a small note, NOTE, note. The term Paleolithic, the term Paleolithic coined by John Lubbock. John Lubbock. Paleo, next इसी में, Paleo is a Greek term. Paleo is a Greek term, means inverted commas old, and lithic stands for stone. Okay, so we will start with the middle Paleolithic from next class onwards, and जितना कराया उसको revise करना and start reading NCERT from today itself, ठीक है, I am expecting that. Thank you everyone.